Welcome back, ladies and gentlemen, to yet another power-packed session on Panchayat at the cusp of new phase of governance. I call it power-packed because we have some of the dynamic young leaders of the country, youth icons, who would be the eminent panelists of the session. So I'll just give you a brief about the session. Any mention of governance from grassroots to global is incomplete without panchayats. From local self-government institution that devolves power to the local people for the development of their community, panchayats have become the foundation of the governance movement in India. The imperative for developing probity in governance for a futuristic model having global relevance evolves the strengthening of panchayats today. Having developed the model governance code of Gram Panchayats, the Institute aims at exploring opportunities for company secretaries by delving into the thematic discussion. And for this, I would like to invite CS Hitendra Mehta, Council Member ICSI, who is also the Chairman of the Editorial Advisory Board of ICSI, to formally welcome the dignitaries on stage and present the Angavastram and planters. May I invite the learned panelists on the speaker. To begin with, I'd like to invite Shri Gopal Krishna Agarwal ji, who is session chair and a very eminent personality. So I'll be giving a description, introduction in a little while. Now I request our next panelist, Mr. Amitabh Soni, founder Abhedya, to please come on stage. Our next panelist, Ms. Bhakti Sharma, Sarpanch Barkheri. We welcome you, ma'am. Our next panelist, our very own, Dr. Shyam Agarwal, past president, ICSI. Welcome. Welcome, sir. And our fourth panelist of the day, Mr. Ishu Tayal, Senior Manager, National Securities Depository Limited. Welcome to ICSI, sir. All right, I'll briefly introduce all our eminent dignitaries on the dais. We start with CA Gopal Krishna Agarwal, former council member of ICSI and government nominee. He's an Indian politician and a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI. He's currently the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party for Economic Affairs. He also holds key positions in several non-political organizations. He's been on the board of directors of the Bank of Baroda. He's a trustee for the Indian Policy Foundation, IPF. Our next panelist, Mr. Amitabh Soni, is the founder of Abhedya, Seva and Samaj Service and Community. He's been Seva and Samaj have been central to his growing up years, thanks to being raised in an army household and an early exposure to teachings of Swami Vivekananda. While still a student, he organized English and maths coaching for kids living in the slums of Indore.
He worked in London for 11 years in British Social Service Department, focusing on elderly care. There, he also took up the cause of persecuted minorities in Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Gilgit-Baltistan, Sri Lanka, and Malaysia. The desire to contribute constructively to the motherland brought him back to India. He founded Abhedya in 2015 with the aim to bridge the rural-urban gap and empower villages. The work and the well-wishers have only growing since. Our next panelist, Ms. Bhakti Sharma, is someone who returned from the United States to successfully contest Sarpanch elections in Barkheri, Abdullah village, outskirts of Bhopal. In 2016, she was included in the list of top 100 most influential women in India. A postgraduate in political science, Bhakti had shifted to the US with her uncle's family in Texas after completing her studies. However, she realized that she wanted to serve the society and returned to her native village in India, refusing jobs with hefty packages in the US. By ensuring the effective implementation of government schemes on ground, the hardworking 28-year-old hopes to make Barkheri a model panchayat. Welcome. Welcome, ma'am. And now our own CS Dr. Shyam Agarwal, past president, ICSI, and practicing company secretary. A man of stupendous vision, professional vigor, colossal discipline, and having versatile experience, CS Dr. Shyam Agarwal has plenty of achievements to his credit. Having held the posts of president and vice president of the Institute of Company Secretaries of India at quite a young age, he was also elected as the international secretary of the prestigious Corporate Secretaries International Association, CSIA, having its registered office at Hong Kong. It is during his tenure as president ICSI that the institute not only marked its entry into the Guinness World Records, but also received the honor of having the benign presence of Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, at the inaugural session of its Golden Jubilee year. Welcome, everyone. Welcome to ICSI. Good afternoon, ladies and gentlemen. It is indeed a privilege and pleasure to be amongst such a distinguished panel and to be in the company of the eminent personalities of the likes of Shri Gopal Krishna Agarwal ji, who is going to chair this session. As you all know, the theme of today's theme of this 48th National Convention is grassroots to global. And as rightly said, that when we talk of governance, rather superior governance from grassroots to global, how can we think without discussing about panchayats, without discussing about towns, without discussing about cities and other aspects of the, the governance system in our country. So when we talk of governance, rather superior governance, it is nothing but a mindset created, a behavior followed, and a habit developed. This is how actually we develop a national character also. And Indore is a very befitting example of good governance, rather superior governance, and has been righteously getting this award of the cleanest city of India for last 4 years successively. And unless we have this national character, or to say simply doing things which we are supposed to do in common sense, I mean, whether keeping the city clean or whether maintaining hygiene or whether following small habits, I mean, small contribution from each individual can make a great nation. And this is today's dire need, that we evolve a national character like that of Japan, and we make it a Jan Andolan kind of thing. Like our honorable chief guest yesterday stressed upon this aspect. Unless we make anything a Jan Andolan, we cannot think, moving a country like India, country of the size of India. So if we can start from the very smallest unit of the democracy, that is panchayat, I think that would be the fittest thing to do in the present state of situation or present circumstances. When as an institution, we talk of panchayat governance,
our own youngest president, Dr. Shyam Agarwal. He is, I think, the mover of this idea of panchayat governance. And when he was president of the institute, he brought, certain publications on this panchayat governance, and he mooted this idea before the central government and with many state governments also. And that has been received very positively by the central and the state governments. And going forward, we see that institute playing a very, very constructive role in developing panchayat governance code for states, for center, and what kind of model panchayat should be there. I think if institution can contribute in that, so I'm reminded of Dr. Prahlad's novel, Profit at the Bottom of the Pyramid. So unless we think of taking thing to a scale, or unless we start from the big volume thinking in mind, we cannot think of making it big. And this governance, when we talk of panchayat, it is required in almost all aspects, all facets of the governance system. Like it could be sports institutions, it could be municipal corporations, it could be even political governance system. Gopalji is sitting, he is spokesperson of the biggest political party of the world, Bharatiya Janata Party, and he would be, I think, the right person to share his wisdom on this governance, particularly the political governance, and that includes panchayat, of course. So without taking much time, I would straight away request our chairman of the session, Shri Gopal Krishna Agarwal ji, to kindly take over the proceedings from here on. धन्यवाद मेहता जी। मेरे साथ मंच पर जो आज के पैनलिस्ट हैं, जिन्होंने बड़े मेहनत से और प्रैक्टिकल रूप से इस पंचायती राज को जिया है, ऐसी भक्ति शर्मा जी और अमिताभ सोनी जी, जिन्होंने समाज में बदलाव के लिए पहल, जैसा कि उनके परिचय में आया, बताया, और जो इस पंचायती राज कोड को जिन्होंने मूर्त रूप दिया, ऐसे डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी। मैं भी था उस वक्त काउंसिल में जब इन्होंने ये सारा कोड लॉन्च किया, और आज इसको अलग अलग भाषाओं में इसको अब ट्रांसलेशन करके ICSI आगे ले जा रहे हैं। NSDL का तो बहुत रोल है देश के फाइनेंशियल मार्केट्स और डिजिटल रिवॉल्यूशन में, उसके रिप्रेजेंटेटिव ईशू दयाल जी। यहाँ पर बैठे हुए ICSI इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए कंपनी सेक्रेटरी के जो लोग, प्रबुद्ध लोग, कई पास्ट प्रेसिडेंट हैं, और मैं आज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट श्री आशीष गर्ग जी को, पूर्व प्रेसिडेंट, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट रंजीत जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, पूरे स्टाफ को, सूर्य एसोसिएशंस को, जो इतनी विकट परिस्थितियों में इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया। मैं एक बार चाहता हूँ कि तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत मुश्किल है ऐसे डर के माहौल में, ऐसे पेंडेमिक में आज को इतने बड़े स्केल पे पहला फिजिकल प्रोग्राम होगा, तो ये इंस्टीट्यूट के लिए, पूरे स्टाफ के लिए बहुत खुशी की बात है। उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज साथियों, ये पंचायती राज का ये महत्वपूर्ण विषय हम सब ले रहे हैं, और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भारत अब आने वाले समय में, भारत का जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसके 75 वर्ष सन 2022 में पूरे होंगे। उसके लिए केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे पहल कर रहे हैं, और हमारे मजबूत डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है कि विश्व में इतना बड़ा प्रजातंत्र में, जब हम 1947 में आजाद हुए तो लोगों को लगता था कि यहाँ पे पॉवर्टी है देश में, एजुकेशन का स्तर इतना कम है। 1000 साल के गुलामी के बाद हम लोग आए, तो क्या प्रजातंत्र के महत्वपूर्ण राजकारण की प्रक्रिया को हम लोग सही ढंग से ले जा पाएंगे? और मुझे ये खुशी होती है
कि हम लोगों ने उस प्रजातंत्र को, उस डेमोक्रेसी को बचा के ही नहीं रखा, मजबूती से आगे भी बढ़ाया। और जो डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में महत्वपूर्ण होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और जो एम्पावरमेंट ऑफ द वीकर सेक्शंस, जो समाज के अंतिम छोर पे जो रह रहा है व्यक्ति, उसका सशक्तिकरण का जो पूरी प्रक्रिया जिसके कारण प्रजातंत्र जाना जाता है, उसको हम लोग बड़ी अच्छी तरीके से आगे ले जाने के लिए सक्षम हुए। और यह जो वर्तमान, और इसमें यह पंचायती राज का जो प्रक्रिया है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रजातंत्र में केवल एक कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस नहीं है, बल्कि उसमें यह आवश्यक है कि एम्पावरमेंट और डिसेंट्रलाइजेशन पावर का हो, विकेंद्रीकरण हो सत्ता का, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहल है। और यह नहीं है, ये जो 1993 में तो वर्तमान पंचायती राज सिस्टम आया, और इसके 3 टियर में हम लोग लेके आए वर्तमान में कानून में, कि एक तो ग्राम पंचायत है ग्रामीण विलेज क्षेत्र में, फिर ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति बनती है कई विलेज के पंचायत को लेके, और फिर 3rd टियर जो है पंचायती राज का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद के रूप में। यह तो 1993 में आया, लेकिन प्रजातंत्र का जो प्रक्रिया भारत में थी वो कोई नई नहीं थी कि 1947 में हम डेमोक्रेसी बने। कई लोगों को कई बार ये गलतफहमी रहती है, लेकिन सदियों से, दशकों से ही नहीं, कई सदियों से ऐसा चलता आ रहा था कि भारत में प्रजातंत्र की जड़ें बहुत गहरी है। कई लोगों ने पढ़ा होगा कि भगवान बुद्ध के टाइम में, सिद्धार्थ जब थे, 2500 वर्ष पहले गणराज्य थे, छोटे छोटे गणराज्य थे। उसमें जो डिसीजन होते थे वो कलेक्टिवली लिए जाते थे, सब लोग मिलके, इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उसको कलेक्टिवली लोग इकट्ठा होके गण परिषद जो होता था वो लेके, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने का जो प्रधान होते थे उनको जिम्मेदारी दी जाती थी। तो डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज्ड था, कलेक्टिव था, और ऐसी प्रक्रिया के कारण हम लोग आगे बढ़े। एक बार इतिहास से और हमें देखना चाहिए कि ये जो ग्राम लेवल पे जो एम्पावरमेंट भारत ने किया, उसमें राज्य और राष्ट्र की जो परिकल्पना थी वो बिल्कुल सेग्रीगेट थी। यानी गांव में, हमारे देश में कई राजा आए, विदेशों के भी आक्रांत आए, शक, हूण, बहुत सारे अंग्रेजों का भी राज्य आया, लेकिन जो ग्रामीण व्यवस्थाएं थी वो कंटिन्यूस चलती रही। राजा बदलते रहे, राज्य बदलते रहे, और लेकिन गांव की स्थिति, गांव के लोग और नगर के छोटे छोटे लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी, उनकी सत्ता के जो विकेंद्रीकरण की स्थिति, वह चलती रही। और इसलिए हमारे आम रोजमर्रा के जीवन में, ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में, सब जगह पे कोई बदलाव, फर्क बहुत नहीं आया। तो यह पूरी व्यवस्था आज सुदृढ़ होकर आगे बढ़ रही है, और उसके ऊपर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी जैसा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जो कॉरपोरेट जगत के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, कॉरपोरेट जगत को एनलाइटेंड सिटीजन बनाने के लिए काम कर रहा है, उसने इतनी बड़ी पहल ली, तो यह बहुत बड़ी बधाई की बात ही है। जो वर्तमान में स्थिति आई, जो वर्तमान में ग्राम स्वराज जो बात है पंचायत की, वह महात्मा गांधी के उद्बोधों से हम प्रेरणा लेते हैं। उनकी जो एक किताब है ग्राम स्वराज, उसके अंदर उन्होंने डिटेल से लिखा हुआ है कि ग्रामीण व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इंडस्ट्री कैसी होनी चाहिए, सैनिटेशन कैसा होना चाहिए, पानी की व्यवस्था कैसे हो, रोजमर्रा के उद्योग कैसे हो, रहने की व्यवस्था क्या हो। ग्राम स्वराज की छोटी सी पुस्तक है, उसमें उन्होंने एक पूरी परिकल्पना महात्मा गांधी ने दी, इंडस्ट्री से लेके, उद्योगों से लेके, रहने का लेके, एडमिनिस्ट्रेशन की सारी बातें उन्होंने लिखी। और जरूर फर्क आ गया, इवॉल्व हो गए, आगे बढ़ गए, लेकिन उसकी परिकल्पना फिर महात्मा गांधी के विचारों में हम लोगों को मिलती है। उसमें 2 चीजें मैं जरूर मेंशन करना चाहता हूं। एक बात उन्होंने कही थी जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है, वह है स्वदेशी की परिकल्पना, स्वदेशी की, सेल्फ सफिशिएंसी की। उसमें गांधी जी ने क्या कहा था कि जो आवश्यकताएं ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति को, उसकी आपूर्ति उसी के पास हो, वहीं पे जितना लोकल आधारित हमारी अर्थव्यवस्था रहेगी, जीवन यापन का
प्रकल्प रहेगा, व्यवस्था रहेगी, उतना ही हम सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट रहेंगे, सत्ता के ऊपर उतने कम से कम आधारित रहेंगे, उतने ही ज्यादा एम्पावर्ड रहेंगे, सशक्तिकरण के साथ सशक्तिपूर्ण तरीके से रहेंगे। और कहीं ना कहीं उसी परिकल्पना को आज हम आत्मनिर्भर भारत के रूप में प्रधानमंत्री के मोदी जी के संदेश में देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत में कई बार कुछ कंफ्यूजन कुछ लोगों को हो जाता है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि हम क्लोज्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, हम ग्लोबल सप्लाई चेन, रीजनल सप्लाई चेन से अलग हटते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि लोकल लोगों के साथ उसकी व्यवस्था को जितना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाते, सेल्फ सफिशिएंट बनाते रहेंगे, वह पूरी कल्पना है। और वह कहीं ना कहीं गांधी जी के स्वदेशी और आत्म ग्राम स्वराज की परिकल्पना से भी हम लोगों को जोड़ती है। और सशक्तिकरण के लिए जो पंचायत में जो महत्वपूर्ण विजय आज के लिए रहेंगे, वह है कि क्या जो वर्तमान व्यवस्था है पंचायत की, उसने पावर को विकेंद्रीकृत किया। पावर डिसेंट्रलाइज अगर नहीं हुआ तो पंचायत व्यवस्था फेल है। केंद्र में अगर फेडरल स्ट्रक्चर में हमें केंद्र सत्ता, प्रदेश की सत्ता और उसके नीचे ग्रामीण व्यवस्था, तो जितना सेंट्रलाइज पावर होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी और आम जनता की भावनाओं, आकांक्षाएं उसमें सरकार की नीतियों में समावेश और इंटीग्रेट नहीं हो पाएगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके विषय में मैं चाहूंगा कि पैनलिस्ट लोग बोले कि क्या वर्तमान पंचायत व्यवस्था हमारे जो परिकल्पना थी फोर फादर्स की कि उसको डिसेंट्रलाइजेशन में सफल हुई है क्या? कितना आम जनता का पब्लिक पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में, रिसोर्स एलोकेशन में और पॉलिसी मेकिंग में पब्लिक पार्टिसिपेशन को कितने हम सफलता से लागू कर पाए हैं, वो बात है जिसके कारण आज जो एक हम इंस्टीट्यूट का जो वो लाए, जिस पे श्याम जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बोलेंगे कि कोर्ट जो है पंचायत में डिसीजन मेकिंग में आम जनता का कितना पार्टिसिपेशन होता है। और ये दो चीजें तो सरकार की व्यवस्था और पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग और रूल्स रेगुलेशन से आएंगी, लेकिन एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन और रिसोर्स जनरेशन और एम्पावरमेंट ऑफ ऑल पीपल, यह पंचायत का अपना रोल है। अगर सत्ता ने, रूल्स रेगुलेशन लॉज ने, केंद्र ने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करा है, यह उनका रोल है। उसके बाद पीपल पार्टिसिपेशन को इंश्योर करके ट्रांसपेरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट किए हैं कि नहीं, यह केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की सरकारों की जिम्मेदारी है। लेकिन पंचायतों का अपना रोल बहुत बड़ा है कि वो जो पॉलिसीज बनती हैं, जो उनको एफिशिएंटली इंप्लीमेंट करते हैं क्या, रिसोर्स जनरेशन को प्रॉपरली करप्शन फ्री तरीके से, जो केंद्र से प्रदेश सरकार से रिसोर्स आते हैं, लोकल रिसोर्स जनरेशन होते हैं, तो उसको भी वह सही ढंग से खर्च करते हैं क्या। और एम्पावरमेंट लोगों का, खासकर शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स, महिलाओं का जो एम्पावरमेंट पंचायत के अंदर एक महत्वपूर्ण फॉर्मेशन में है, वह होता है कि नहीं। तो यह अगर होता है तो जो हमारा संविधान के जो फोर फादर्स थे, जिन्होंने हमारे संविधान को दृष्टिगत रख के हमारा संविधान बनाया, और जिसका एक मुख्य मुद्दा था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का जो क्राइटेरिया है, हर व्यक्ति का इक्वल वोट जो है, उस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में को हम अच्छी तरह से लागू कर पाएंगे। और साथ में एक फोरफादर ने प्रीएम्बल में लिखा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट अनलेस वी अचीव द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। यानी जो समाज का अंत्योदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, समाज के जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है उसको रिसोर्स में कितना उसकी भागीदारी होती है। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, रिसोर्स जो केंद्र के हैं, सरकार के हैं, राष्ट्र के हैं, वह हर व्यक्ति पे उसका इक्वल अधिकार है, उसको सुनिश्चित करना। तब जब जाके पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अपने आप में सफल तब होगी जब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारे कानून में वर्तमान में 29 सब्जेक्ट हैं, 11 शेड्यूल में वो सब दिए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये इंस्टीट्यूट का जो पहल है आज, यह इस सारी चीज को आगे ले जाने के लिए बहुत हमें हेल्प करेगा। और जो पंचायत राज का मैं पढ़ रहा था, वेबसाइट में भी देख रहा था, तो
तो उन्होंने कहा कि कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है। हमारे देश के ज्यादातर 70% पॉपुलेशन जो है वह ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और वह कृषि पे उसकी रोजगार ज्यादा आधारित होती है। तो कृषि क्षेत्र के सुधारों को भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें। आज 2-3 सुधार का कृषि क्षेत्र के सरकार बिल लेके आई है, जिसके 20 वर्षों से 2 दशकों से इसके बारे में सब जगह पे डिमांड हो रही थी कि मार्केट इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए खोलना चाहिए, मंडियों के रिफॉर्म्स चाहिए और एम्पावर करने के लिए ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक किसानों को मार्केट की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जब सरकार ऐसे लाए तो इसका कई जगह हम विरोध देखते हैं। तो यह पंचायतों का भी इसमें मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल है कि कैसे मंडियां हैं उनकी व्यवस्था कैसे ठीक चल रही है, वैल्यू एडिशन किसान अपने यहाँ पे अपने क्षेत्र में कर सकता है क्या, फूड प्रोसेसिंग की छोटी छोटी लघु उद्योग वो लगा सकते हैं क्या, एफपीओ का जो प्रावधान है वो हमारे क्षेत्र में पंचायतों में इम्प्लीमेंट हो चुका है क्या, डेयरी फार्मिंग जैसे इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज क्या किसान लोग साथ में ले सकते हैं, पानी की उनकी व्यवस्था ठीक है। यह सारी चीजों को ग्रामीण क्षेत्र में लेने का एक बहुत बड़ा विचार पंचायत के ऊपर हमारे संविधान ने जिम्मेदारी डाली है और वह बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है। और मुझे लगता है कि आज की चर्चा में ये सारी चीजें हमारे सामने आएंगे। जो पैनलिस्ट हैं वह लोग अपने अपने विचार भी रखेंगे, कुछ मैं प्रश्न भी उनके साथ रखूंगा। जो स्ट्रक्चर रहेगा वो ये रहेगा कि इनिशियल जो अपने पैनलिस्ट हैं अपने ओपनिंग रिमार्क में अपनी जर्नी भी बता सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं और उसके बाद कुछ प्रश्न 1-2 प्रश्न मैं उनके सामने रखूंगा, वो भी साथ में जवाब दे सकते हैं और फिर ओपन हाउस हम लोग करेंगे। तो मैं समझता हूं कि तभी यह एक सार्थक पहल इंस्टीट्यूट की होगी और अपने लक्ष्य तक हम पहुंचेंगे। धन्यवाद। यहीं से मैं कर लूंगा और अगर चाहते हैं पैनलिस्ट तो वहां भी जाके बोल सकते हैं और या अपने यहाँ पे भी माइक हम देंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं बुलाना चाहूंगा इनको भक्ति शर्मा जी को, जो सरपंच है बड़खेड़ी के सरपंच हैं। जैसे इनका इंट्रोडक्शन भी दिया मेहता जी ने कि इन्होंने अपना एजुकेशन बैकग्राउंड तो है ही, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। तो यह एक महत्वपूर्ण रोल है जो कि इनका इस क्षेत्र में रहेगा। मैं इनसे अपना विषय के साथ ये बात भी चाहूंगा कि आज के समय में जो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत इलेक्शंस भी बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, लेकिन छोटे नहीं रह गए वो, और काफी उनका आगे महत्वपूर्ण रोल हो गया। जैसे कि जो वर्तमान में जो सरकार है, जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, उन लोगों ने पंचायत से लेकर ऊपर तक के इलेक्शन को बहुत ही महत्व दिया है। तो उसको सामने रखते हुए, चाहे हैदराबाद के इलेक्शन हो और भी इलेक्शंस हैं, तो उनको सामने रखते हुए ये अपना विचार हमारे सामने रखें और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बार ताली से इनका स्वागत कर दीजिए। वैसे तो तालियां सबको अच्छी लगती हैं, मगर मुझे लगता है कि आशीष गर्ग जी जो हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, उनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बिकॉज काबिले तारीफ काम है कि जहां सब इतना डर रहे होते हैं कि हम लोग कोविड में कहीं आएंगे या नहीं आएंगे, और उन्होंने सच में ये जोखिम उठाया है अपनी और हम सबकी जिंदगी को दोधारी तलवार पे रख के। हालांकि मुझे दिख नहीं रहे वो, बट यस, थैंक यू सो मच फॉर द इन्विटेशन। आदरणीय मंच, सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, डॉक्टर श्याम जी, अमिताभ भैया, ईशु जी, हितेन मेहता जी और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों को सरपंच भक्ति शर्मा की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। प्रश्न बहुत सिंपल है कि सिनेरियो कैसा है आज के समय में चुनाव का, और मुझे लगता है कि बहुत अहम भूमिका है इस समय चुनावों की। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी 70% लोग गांव में निवास करते हैं
और जब आप सब लोग लुई विटॉन, गुची, रैल्फ लॉरेन, फेरागामो के कपड़े पहनते हैं, हम आज भी अपने खादी के बने हुए कपड़े पहनते हैं। और फिर कोविड में आवश्यकता जो है वो गेहूं की ज्यादा पड़ती है। सो हमें कैसे देश से आते हैं। और इसके अंदर पंचायत का क्या रोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे चुनाव जो हैं वो बाकी चुनावों की तरह होते हैं, जैसे एमएलए, मेयर और एमपी के चुनाव की तरह, बट कुछ कुछ चेंजेस हैं इन चुनाव में। और हाँ सर, आपने बिल्कुल सही बात कही कि एक बहुत प्रोग्रेसिव चुनाव हो चुके हैं। प्रोग्रेसिव से ज़्यादा मुझे लगता है इंक्लूसिव चुनाव हो चुके हैं। इंक्लूसिव गवर्नेंस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इंक्लूसिव गवर्नेंस का मेरा मतलब है कि 50% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। सुनने में लगता है अच्छा क्या सही में महिलाएं इतनी हैं? सो लेट मी टेल यू, वी हैव अप्रोक्सीमेटली 6 मिलियन women who have been elected at these positions in our country. ये इतना ही छोटा आंकड़ा है जितना कुछ कुछ कंट्रीज का शायद इस वर्ल्ड में आंकड़ा है। उतनी महिलाएं जो हैं वो उप सरपंच हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, जनपद हैं, जनपद सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। और इंक्लूसिव गवर्नेंस का ये भी मतलब है, प्रोग्रेशन का ये भी मतलब है कि जो महिलाएं हैं अब वो अपनी भागीदारी दे रही हैं। विद कमिंग अप ऑफ द 6 years ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ प्रधानमंत्री मोदी जी, लेट मी टेल यू द काइंड ऑफ द इंक्लूसिवनेस दैट द women have come up, especially in the आम सभास, in the ग्राम सभास। 6 साल पहले मेरी पंचायत के जब चुनाव हुए थे और मैं एक छोटा सा उसमें देख रही थी कि कितनी महिलाएं ग्राम सभाओं में आती हैं, तो नंबर कुछ था 40-50। आज 2/3 फोरम पूरा कंप्लीट होता है पंचायत के चुनाव में। तो हाँ जरूर महिलाएं जो हैं विद अवेयरनेस, काउंसलिंग जो कंटिन्यूस हो रही है, सेशंस हो रहे हैं और तमाम सोशल मीडिया जिस तरीके से महिलाओं को बढ़ावा दे रहा है, वी कुड एक्चुअली सी दैट यस दिस इज अ प्रोग्रेसिव गवर्नेंस दैट हैज कम अप। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंक्लूसिव गवर्नेंस जो है यही हमारे देश की डेमोक्रेसी को, देश की लोकतंत्र को मजबूत करती है, जहाँ पे लोगों को अपना अधिकार है अपनी बात को रखने का। एक छोटा सा वाक्य 6 साल पहले का बताना चाहूंगी। जब मैं सरपंच बनी, सो देयर वर लॉट ऑफ वुमेन, यू नो, दे केम अप एंड सो वी जनरली हैव टू पास अ फोरम अगर हमको पंचायत में कोई भी काम करवाना होता है तो। सो दूर से वहां से महिलाएं खड़ी होकर कहती हैं, वहां हमारे यहाँ बुंदेलखंडी चलती है, इतने भाई जो पहली सड़क बने ना वो तो स्कूल की बने। मैंने कहा बच्चों को स्कूल तो भेजती नहीं हो, फिर काहे के लिए स्कूल की सड़क की जरूरत है? कहते नहीं भाई, हम इसलिए नहीं भेज पाते क्योंकि वहां पे 2-2 फीट का पानी होता है। पहली सड़क जो बने वो स्कूल की बने। ट्रस्ट मी, द फर्स्ट रोड दैट वाज मेड इन आवर पंचायत दैट वाज कंस्ट्रक्टेड वाज ऑफ द स्कूल। You know why this is important? Because that road is not only a road to education. That road is a road to the safety of women. That road is a road to the vision of the people. That road is itself is going to imply something that yes, the people of the country are changing. और हम क्योंकि मुझे सर बता रहे थे कि करीबन 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारे देश का यूथ है जो पीछे भी बैठे हुए हैं। लेट मी टेल यू समथिंग, द बेस्ट 3 थिंग्स दैट वी हैव इज दैट यस वी आर बोर्न एस्पिरेशनल, सेकंड वी आर बोर्न डिजिटल, एंड थर्ड इज दैट यस सेल्फलेसली वी रियली विश टू डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर नेशन। और इसकी जो ग्रास रूट है आज के देश की राजनीति की, वो शुरू होती है सरपंच के स्तर से। लोगों को लगता है अच्छा कोई सरपंच होगा, आ जाएगा भैया, धोती पहन के, मूछे होंगी, महिलाएं जो है वो घूंघट लिए होंगी और पता नहीं चलेगा क्या है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, सरपंच की पावर्स इतने होते हैं कि जो एमएलए है उसको भी परमिशन लेनी पड़ेगी कि मे आई प्लीज कम टू योर पंचायत इफ यू गिव मी टाइम। सो दिस इज द पावर ऑफ द सरपंच। और आज के परिप्रेक्ष्य में जब गोपाल सर कह रहे थे कि मोदी जी आत्मनिर्भर भारत पे काम कर रहे हैं, तो आप सबने सुना था 20 लाख करोड़ का पैकेज है। क्या है ये 20 लाख करोड़ का पैकेज? ये 20 लाख करोड़ का पैकेज सीधे किसी को टारगेट करता है तो वो हमारे देश के 4.25 लाख गांव, 2.5 लाख पंचायत हैं जिनको टारगेट करता है, जहां पे खाने को लेके, जहाँ पे किसानी को लेके, जहाँ पे सेल्फ यू नो स्किल डेवलपमेंट को लेके, रोजगार को लेके जहाँ काम हो रहा है, तो वो हमारी पंचायतें हैं। तो क्यों ना इन चुनाव को भी उतनी ही महत्वपूर्णता दी जाए जितनी एमएलए और एमपी के चुनाव को दी जाती है। एंड वन थिंग, आप लोगों के चुनाव में तो मुश्किल से 60% वोटिंग भी हो जाए तो आप लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं। हमारी पंचायतों के चुनाव में 90% वोटिंग होती है। 1009 वोटर्स मेरी पंचायत में थे, करीबन 995 लोगों ने वोट दिया था। तो हम ऐसे देश से आते हैं। अब रही बात कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, तो बस इतना सा है कि मैंने मास्टर्स करा था पॉलिटिकल साइंस में, मैंने समर स्कूल्स करे हुए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, लीडरशिप और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। और बाकियों की तरह मैं एक किसान परिवार से आती हूँ। मेरे दादाजी किसान थे, मेरे पिताजी किसान थे, मेरे भैया किसान हैं। और हाँ, बाय द वे ही इज इन ऑनर्स इन इंजीनियरिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ही गॉट हिज डिग्री फ्रॉम APJ Abdul Kalam Sahab. Is that audible? Okay, yeah, cool, thanks. So
वी कम फ्रॉम सच अ बैकग्राउंड वे वी अंडरस्टैंड कि रोटी कितनी आवश्यक है। और एक ऐसी पंचायत जहां मात्र 9 शौचालय थे, पंचायत ओडीएफ हो चुकी है। एक ऐसी पंचायत जहां मात्र 50 घर भी पूरे नहीं थे, मगर आज हमारे पक्के घर, और आज मेरी पंचायत में 200 से ज्यादा पक्के घर हैं। एक ऐसी पंचायत जहां 10 करोड़ से ज्यादा का काम हो चुका है। आपकी इंदौर की सड़कें देखिए और मेरे पंचायत की सड़कें देखिए, 10 से 12 इंच के क्रस्ट की सड़कें विद प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी। वी हैव कम अप विद स्टॉप डैम्स, वी हैव कम अप विद चेक डैम्स। Not even a single child is malnutrition in our panchayat, and from past 6 years मेरी पंचायत में सेक्सुअल हैरेसमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस को लेके एक भी घटना नहीं हुई है। ऐसी है बरखेड़ी अब्दुल्ला पंचायत, एक ऐसी पंचायत जिसको ज्यादा तो नहीं, करीबन 30-40 अवार्ड मिल चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति ने सम्मानित करा है। मैंने हिंदुस्तान की पंचायतों को सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम पे में प्रतिनिधित्व किया था, और ज्यादा पुराना तो नहीं बट पिछले साल यूनाइटेड नेशंस में क्या था। एंड ओवर देयर इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू स्पीक ऑन इंक्लूसिव गवर्नेंस फॉर विच आवर कंट्री इज नोन। तो जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं, आप सब समझिए कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी नीड टू टेक अ यू टर्न। वेयर इज दिस यू टर्न? दिस यू टर्न इज कमिंग बैक टू आवर विलेजेस। ट्रस्ट मी, द विलेजेस वांट यू, the kind of the ideas you have, the kind of the intellectual level you people have, I'm sure we can actually do wonders in our panchayats. Thank you so much. Thank you for the invitation. Jai Kisan, Jai Madhya Pradesh, Jai Bharat. With all the greatness, can I expect everyone to please say Bharat Mata ki? थोड़ा सा तेज, इतना बड़ा कन्वेंशन था, सर तो बता रहे थे यहाँ पे 2-2 हजार लोग हो सकते हैं। तो एक बार आशीष जी के लिए भारत माता की नमस्कार। थैंक यू। धन्यवाद। No wonder she is one of the top 100 influential personality women in India. So you can see the new face of Sarpanch, Mahila Sarpanch. थैंक यू, आपने विषय को इनिशिएट किया। मैं चाहूंगा कि हमारे जो नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं सोनी जी, वह इस विषय को ले लें। एक महत्वपूर्ण विषय, हमारे देश में युवाओं की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। वी आर ए यंग कंट्री and under 35, more than 65% of our population is under 35 year of age. उनके लिए बहुत ज़रूरी है, एक तो एम्प्लॉयमेंट तो होना ही है, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा होता है समाज में बदलाव करने का, बड़ी एनर्जी होती है, वाइब्रेंसी होती है। पिछले बजट में सरकार ने भी प्रयास किया था कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डेवलप करें, क्योंकि जो समाज में सेवा करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, चैरिटी के रूप में सेवा भाव से आगे काम करते हैं, अगर वो खुद भी उसी चैरिटी पे अगर डिपेंड हो गए तो वो कैसे समाज में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो उसके लिए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी बहुत जरूरी है। बट ऑब्जेक्टिव शुड बी टू मेक बिग डिफरेंस इन द सोसाइटी। तो कैसे इन्होंने युवाओं को जोड़ के समाज में बदलाव के काम किए और इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे सरकार की ये जो इनिशिएटिव है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की, अभी तो सेक्शन 8 कंपनी है, सोसाइटीज हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, लेकिन उसमें प्रॉफिट मोटिव हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते, जिसके कारण बहुत सारे करप्शन के इश्यूज हम देखते हैं, चाहे एजुकेशन सेक्टर में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम प्रॉफिट मोटिव को भी इंटीग्रेट कर दें तो यह जो इनिशिएटिव है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डेवलप कर सकते हैं, और अपने एक्सपीरियंस के साथ जोड़ के अगर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। एक बार ताली से सोनी जी का स्वागत सब कर लें। Namaste, Jai Hind. Dignitaries present on the dais and my brothers and sisters off the dais and the stage who may be struggling to keep awake. Post-lunch sessions are very difficult. They're daunting. Before I start, a big thank you to my friend Ashish Garg and his team. You put up a great show. Preeti ji, Sonu ji, excellent work. I take this opportunity on behalf of all of us delegates here to thank you deeply. ये बड़ी दुविधा रहती है मेरे साथ में कि मैं इंदौर में हूँ, इंदौर में ही पैदा हुआ हूँ और यहाँ पर अंग्रेजी बोलने में मुझे थोड़ी कठिनाई होती है,
लेकिन कुछ हमारे बंधु जो दक्षिण से हैं वो शायद हिंदी, और जिस प्रकार की इंदौरी हिंदी हम लोग बोलते हैं वो शायद उनको समझने में कठिनाई हो। तो मैं शायद प्रयास कर रहा हूँ, यदि मंच की अनुमति हो तो हिंदी इंग्लिश मिक्स में मैं बोल पाऊँ। तो आपने जो प्रश्न किया कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है, या हमारे जो युवा हैं जो प्रयास करते हैं कि गांव में जाकर, या गांव में नहीं भी गए तो किसी सामाजिक सरोकार से संबंधित किसी भी क्षेत्र में वो अपना काम कैसे जमा सकते हैं। तो मेरे पास कभी भी जीवन में बहुत पैसा नहीं था, विदेश में रहते हुए भी बहुत पैसा नहीं था, क्योंकि गणित में शुरू से ही कम नंबर आते थे। तो ये नंबर कभी समझ में नहीं आए, आज भी नहीं आते हैं। और आप लोग सब कंपनी सेक्रेटरीज हैं, आप तो नंबर से ही डील करते हैं, हो सकता है आप अगली बार ना बुलाएं मुझे, लेकिन आज तो कुछ मिनट बोल के ही जाऊंगा। तो ये नंबरों के विषय में मैं केवल अपने बारे में बता रहा हूँ, हो सकता है नंबर अच्छे हों आपके तो शायद कुछ सहायता मिलती हो। आप जब भी कुछ शुरू करते हैं तो विचार कीजिए कि आप क्यों करना चाह रहे हैं। अभी भी कुछ मित्र या बहुत सीनियर लोग भी, ब्यूरोक्रेट्स भी हम लोग के पास आते हैं, गांव आते हैं, पूछते हैं कि आप कैसे कर रहे हैं ये काम। तो मैं बोलता हूँ कि जी हाँ, थोड़ा गैप ज्यादा है क्या? अच्छा, इस तरफ कम आ रही है। अच्छा अच्छा, तो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह भी आते हैं जो पूछते हैं कि आप कैसे करते हैं काम, कैसे जमाया आपने। तो मैं बोलता हूँ कि आप सबसे पहले एक संस्था जो है वो रजिस्टर कर लीजिए। तो मुझे बताते हैं कि वो तो हम कर चुके हैं, 4-5 साल पहले हम कर चुके हैं, हो चुकी है। तो उनकी पूरी तैयारी होती है, क्योंकि 3 साल के बाद आप गवर्नमेंट फंडिंग के लिए you become eligible for government funding after 3 months. So they're very clear in their minds as to how they're going to generate money. So then I asked them that, you know more than I do, because I started, or we registered our organization much later after we started work. तो थोड़ी सी अपनी जो भावना है उसको चेक कर लें कि हमारी भावना क्या है। यदि आप जहाँ पर काम करना चाह रहे हैं वहां से यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पहले दिन ही गांव के लोगों को बता दीजिए कि आप ऐसा करना चाहते हैं। ये बाद में उनको बताना और सोचना कि अभी छुपा के रखेंगे, बाद में बता देंगे, ये सब काम नहीं करता है। तो जैसे भक्ति का शुरू से क्लियर था, तो कहीं कुछ छुपा हुआ नहीं था, और देश में विदेश में उनका नाम भी है। तो ये लाग लपेट वाला सोशल वर्क मत करिए। इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट हेल्प यू, इट विल नॉट हेल्प द पीपल दैट यू आर ट्राइंग टू सर्व। We're talking about governance. This is one topic I wanted to touch upon. See, what are we ultimately trying? I've been told that many youngsters are listening to this program, so especially this is for them who are listening to this program online. Governance is a tool. Governance is not an end in itself. It is a tool. The motive, the objective is justice. Justice for all. And governance helps us try and reach situations, try and create circumstances where we can extend justice, nyaya, to one and all. This is what we've been trying, which every government in every nation tries. I worked with the British local self-government. वहाँ पर जो उनकी, आप चाहें तो उसको पंचायत भी बोल सकते हैं, यदि शहरी वातावरण है तो उसको आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोल सकते हैं, उनके साथ मैंने काम किया है। So the basic question is, what makes some organizations, or let's say some nations, smarter than others? What is that? हम क्यों नहीं कर पाते हैं, या वो क्यों कर पाते हैं अभी भी हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यदि हम डिलीवरी की बात करें तो। See, it all has to do with the collective consciousness. जो सामूहिक चेतना जिस समाज की जब जैसी होती है वो उतना उपलब्ध कर पाता है। यदि आपकी चेतना ही वैसी नहीं है, यदि आपकी चेतना और चेती ही बिगड़ी हुई है तो आप बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे। So this is one topic I wanted to address. Second is coming back to the question which Bhai Sahab had asked. How do you set up your own organization, or
the buzzword these days is a social enterprise. So I'm a little uncomfortable with the term social enterprise, क्योंकि हम लोग वैसे काम नहीं कर पाते हैं. मुझसे आके लोग पूछते हैं कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं आपके. तो मैं बोलता हूँ कि जी हम लोग तो किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट की एक the very definition of a project is that it has a start date and it has an end date. So we don't do projects. Everything that we do is a mission. So a mission has no end date. So whatever we do, it's done with a zeal, with missionary zeal. So number one. Number two, do not make the futile attempt to educate Indian masses. Do not go with that mindset कि इनको मैं सिखाने आया हूं. ये सबसे बड़ी गलती युवा हो या प्रौढ़ हो या वृद्ध लोग हो हमारे देश में करते हैं कि इस देश की जो मूर्ख जनता है इसको हम सिखाएंगे, इसको हम समझाएंगे. सभी सोचते हैं ना कि आपके बच्चों को हमने ये सिखा दिया, वो सिखा दिया. मुझे बताते हैं कुछ लोग, मैं नहीं था कुछ दिन, तो कुछ लोग गांव गए थे तो बोले कि हमने आपके बच्चों को सिखाया कि हाथ कैसे धोते हैं और साफ कपड़े कैसे पहनते हैं. तो मैंने आपने बहुत अच्छा किया. तो इस भावना से गांव में मत जाइए. गांव की अपनी चेतना है, अपनी चिति है. जितना मैंने गांव में जाकर सीखा है, हमारे बिल्कुल बीच में एक मुझे कहना चाहिए कि सोशल रिफॉर्मर ही हैं. वो सिर पे उन्होंने साड़ी ढकी हुई है. आप लोगों को लग रहा हो कि गांव से हैं. वो यूएस यूरोप हर जगह जाती रहती हैं. वो श्वेता मिश्रा जी बीच में बिल्कुल बीच बैठी हुई हैं. उनका जरा स्वागत कीजिए. तो आप लोगों को उनको देख के लग रहा हो कि कहीं कोई गांव की महिला बीच में आके बैठ गई है. वो 3-4 भाषाएं बोलती हैं, उसमें अंग्रेजी भी है और बहुत अच्छी हिंदी तो बोलती ही हैं वो. तो इस दिखावे पे या इस पहनावे पे मत जाइए कि कौन कैसा दिख रहा है तो उसको हम सिखा लेंगे, उसको बता देंगे. गांव के व्यक्ति को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं आता है. आप कभी बोलिए गांव के लोगों को कि आप बताइए कि आपकी क्या क्या वैल्यू सिस्टम है, वो नहीं कर पाएगा, नहीं बता पाएगा. तो गांव की जो विशेषता है उनसे सीखने का प्रयास करें, जो उनकी जो सहजता है. All these years I've realized that the tribal belt where I operate, it is proper tiger territory. Tigers actually thrive there, they live there. And those tribals have been living there. So I asked them, आप लोगों में क्या विशेषता? बोले हम में तो क्या विशेषता, हमें तो कोई विशेषता है ही नहीं. एनजीओ आते हैं यहाँ पे, सरकार के लोग आते हैं, सब हमको सिखा के जाते हैं. सब अपना फ्लेक्स लगा देते हैं, हमको बोलते हैं कि आके बैठ जाइए, तो हम बैठ जाते हैं और कुछ कुछ बता के चले जाते हैं. हमारे गांव में बहुत सारे सरकार के, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बहुत सारे पोस्टर्स और फ्लेक्स और दीवारों पे अच्छी अच्छी बातें पानी को लेके वो लिखी रहती हैं. हमारे गांव में केवल 4 लोग हैं जो साक्षर हैं, 30 साल से उम्र के ऊपर के, 30 साल से अधिक उम्र के. तो वो क्या पढ़ते होंगे आप सोचिए. सो आर यू लुकिंग एट द डिस्कनेक्ट हियर? आप कुछ भी लिख के चले जाइए, आप कुछ भी बोल दीजिए. पैरालीगल सर्विस के लोग आते हैं, हॉर्टिकल्चर से लोग आते हैं, सब कुछ ना कुछ उनको बता के चले जाते हैं. तो सबसे पहली गलती ये मत कीजिए कि आपको गांव वालों को जाकर मुख्य धारा में मिलाना है. हमारे गांव मुख्य धारा हैं. तो जो एजुकेशन है वो खुद का शुरू करना है. हमें समझना है गांवों को. श्वेता जी अभी बता रही थी कि एग्रीकल्चर और वैदिक संस्कृति जो है ये जुड़े हुए हैं. आप इनको दोनों को अलग करके नहीं समझ सकते. और जब वो बोल रही थी तो मैं सोच रहा था कि इन 5 सालों में मैंने ये अनुभव किया है कि किसान को आप वेदों से अलग नहीं कर सकते, वेदों को आप किसान से अलग नहीं कर सकते. कुछ समय पहले तक मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि आपका जो बोध वाक्य है उसमें धर्म शब्द है. आपको धन्यवाद भाई साहब उसके लिए. तो ये जो चीजें हैं, आपकी जो कोर स्ट्रेंथ है, आप उस पर फोकस नहीं करेंगे. हम अभी भी कोशिश करते हैं कि, अभी ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे थे इसी मंच से, तो मुझे लग रहा था कि मैं ब्रिटेन में हूं. मैं ब्रिटिश सरकार में काम कर चुका हूं और केवल इस मंच पे नहीं, आप भारत में कहीं पे भी चले जाइए, जो हमारा प्रबुद्ध वर्ग है वो वही बात करता है.
वो बहुत सारे फॉरेन जो क्या कहना चाहिए फिलोसोफर्स जो हैं उनको कोट करेंगे, सब बताएंगे, बहुत अच्छी अंग्रेजी भी बोलेंगे, सब कुछ है और गवर्नेंस के बारे में बताएंगे भी और बहुत अच्छे आइडियाज भी हैं। किसी ने चाणक्य अर्थशास्त्र पढ़ा है क्या? आज से 2000 साल पहले लगभग लिखा गया था और वो केवल अर्थशास्त्र नहीं है, वो ग्रंथ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है उस समय के भारत का। तो जब तक आप इन चीजों को एक्सप्लोर करना प्रयास प्रारंभ नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी सोशल एंटरप्राइज या आपका कोई भी सामाजिक दायित्व आप उसका निर्वहन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। फिर मूल बात पे वापस से आता हूं मैं कि सोशल एंटरप्राइज चलता कैसे, या मैं कैसे चलाता हूं, या हमारी टीम कैसे चलाती है। जब मैं इस गांव में गया था, इसका नाम है केकड़िया, भोपाल से लगभग 40 मिनट की दूरी पे है, लगभग 23-24 किलोमीटर। रायसेन, सीहोर और भोपाल का ये त्रिकोण बनता है ये। और यहाँ पर जो पूरी पूरी पॉपुलेशन है वो आदिवासी है, ट्राइबल है। जिस दिन मैं वहां पहुंचा उस दिन मेरे बैंक अकाउंट में शायद 5-6 हजार रुपए होंगे। तो ये मेरा बैंक बैलेंस था और मेरा बैंक बैलेंस आज भी 10-11 हजार के आसपास आज भी रहता है। ये इसीलिए बता रहा हूं कि बिना पैसे के भी काम हो सकता है। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने मेरे मित्र को बोला कि देखो मैं इस गांव में पहुंचा हूं और मुझे तुम्हारी 1 वर्ष तक की सहायता की आवश्यकता है। फेसबुक पोस्ट नहीं लिखी, मित्र को बोला। तो उसने पूछा कितने कितने रुपयों की आवश्यकता है? तो मैंने बोला 10,000 रुपए की, साल भर तक दे सकते हो, ये गांव में काम करना चाहता हूँ, और नहीं चला तो बंद कर दूंगा। तो उसने बोला ठीक है। हमारी एक और ऐसी दीदी है, उनको बोला कि दीदी आप 5,000 रुपए दे सकते हैं क्या? बोले हाँ ठीक है, 1 साल तक। तो ये जो है ना, हम भारत में हैं, भारत की विशेषता ये है। मैं जब विदेश में था, थोड़ा सा प्रसंग संगति हो जाएगी, विषयांतर, I'll go off the tangent, but it is important. When I was outside of India, I used to wonder, what is that which makes India so different? Why? What is different? Because being in London, I interacted with people from all over the world, all across the world. And I was at the front line. I would go and interview people from different cultures, religious, ethnic backgrounds. And that interaction was very long and it was very intense. And after having talked to them for years, having listened to them, having absorbed what they said, I used to question myself that everybody has a story. What is India's story? भारत में क्या विशेषता है वो? तो उसका जो जवाब है आपको बुद्धि से, मन से नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। वो आपको आपकी चेतना ही वो जवाब दे सकती है। और वो जवाब क्या है? वो जवाब यह है कि भारत पुण्य भूमि है, बाकी भूमियां भोग भूमि है। ये एक मूल अंतर है। ये वो धरती है, वो सभ्यता है जहां पर स्वयं मनुष्य को ईश्वर बनने का मौका मिलता है। ये वो भूमि है, ये वो देव भूमि है। कौन सा समाज बोलता है कि आप ईश्वर बन सकते हैं, मनुष्य ईश्वर बन सकता है? इट इज रिडिकुलस, इफ यू read other texts or civilizations. So when I was back in India, I was trying to set up this social enterprise. I thought to myself, the answer never came. It was my consciousness. I think divinity was sprouting somewhere outside or maybe within that made me approach my friend and my didi. तो यहाँ 15,000 मुझे लगा हो जाएंगे। I started teaching at one of the colleges, so that gave me another 5,000-6,000. तो उससे काम शुरू किया और ये नहीं सोचा था। आज हमारे पास एक IT लैब है जो सोलर पावर्ड है। हम 52 बच्चों को पास के एक प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। उन 52 बच्चों में से 47 वनवासी आदिवासी बच्चियां हैं। पानी का हमने काम शुरू किया है। 3 लाख रुपए की लागत से हमने 11वीं शताब्दी का राजा भोज के समय का एक कुआं है, उसको रिवाइव किया है। और बहुत सारे पंचायत के लेवल पे भी काम चल रहा है, हम लोग वो भी करते हैं। तो ये सब मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि भारत की जो कार्यप्रणाली है उसमें
मन का और बुद्धि का जो उपयोग है वो बहुत कारगर सिद्ध नहीं होता है, वो आपकी चेतना ही कराती है। और फिर उसके बाद जब वहाँ पे पढ़ाने का काम शुरू किया, तो शुरू में मैं युवाओं को साथ में लेके जाता था जो बीकॉम या बीएससी कर रहे थे। तो मैंने गांव वालों से पूछा कि आपका जो शासकीय स्कूल है, क्या हम लोग यहाँ पे पढ़ा सकते हैं? तो मैं यही सोच के गया था। मैं ये नहीं सोच के गया था कि मुझे बहुत परिवर्तन लाना है, मैं ये सोच के गया था कि ये करना है। कर्तव्य बोध था अंदर। तो वो शुरू किया और कुछ हम लोग फेसबुक पे पोस्ट डालते थे। तो जो युवा सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, भाई साहब का जो प्रश्न भी था कि युवा कैसे करें, इसको कैसे शुरू करें, तो मैं आज भी प्रयास करता हूं कि रोज फेसबुक पे या किसी प्रभावी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिख दी जाए, एक फोटो के साथ में। और जब पहली पोस्ट लिखी मैंने, तो उसमें लोगों ने पूछा कि बच्चों के पास जूते नहीं है और किसी ने बोला कि इनके पास बैग नहीं है, तो क्या हम व्यवस्था कर सकते हैं? तो मैंने बोला बिल्कुल आप कर सकते हैं व्यवस्था। तो वो धीरे धीरे करके आज भी मेरे पास 6 महीने में 3-4 ऐसे पोस्ट आ जाते हैं, सॉरी रिस्पॉन्स आ जाते हैं लोगों के। पॉपअप होता है फेसबुक मैसेंजर पे कि वी बीन वाचिंग यू डूइंग दिस वर्क, इज देयर एनी वे वी कैन कंट्रीब्यूट? सो नाउ you cannot plan all of this, right? So you have to be there on the ground, you have to be working and you have to be seen working there. आप लोगों को दिखना चाहिए कि आप काम कर रहे हैं। जी, 3 मिनट का आ गया मेरे पास नोटिस। तो नंबर 1 ये करें आप कि फेसबुक या जो सोशल मीडिया है उसका उपयोग करें। नंबर 2 ये कि आपकी जो संस्था है उसके लिए पैसे ना मांगे। आप बोलिए कि आप व्यवस्था कर दीजिए, तो उससे आपकी ट्रांसपेरेंसी दिखती है कि आप कितने ट्रांसपेरेंट हैं। कुछ भी व्यवस्था हो सकती है। बच्चों के लिए जैसे कपड़े थे, तो हम लोग आग्रह करते थे कि आप हमारी संस्था के अकाउंट में पैसे मत डालिए, आप कपड़े भेज दीजिए, या फिर जो भी सप्लायर है आप सीधे उसको पेमेंट कर दीजिए। तो उससे जो देने वाला है उसको लगता है, उसको पता चलता है कि आप स्वच्छ और स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हैं, आपका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है जो कि बाकी एनजीओ का होता है। मैं चाहूं तो टेक्निकली आप लोग सब कंपनी सेक्रेटरी हैं, मैं फाउंडर चेयरमैन हूं, तो मैं चाहूं तो संस्था से सैलरी ले सकता हूं। तो मेरी सैलरी जो आज भी है वो ऐसे ही आती है। मित्रों ने कुछ दे दिया कि भाई ये इतने महीने दे सकते हैं, तो मेरा आज भी जो खर्चा है वो 20-25 हजार से ही चलता है, और वो भी मेरे गाड़ी के तेल में चला जाता है, जो तेल लगता है। तो कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। So there's certain things that you have to believe in before you make a start. हमारी टीम है, अब हम लोग करीब 5-6 गांव में काम कर रहे हैं, तो इसका विस्तार हो रहा है, इसको हम डुप्लीकेट भी कर रहे हैं। See, one of the key things is that you have to realize that what is your priority. Our priority is to keep the pain of the people, the rest of the world. You have to keep their pain and their agony at the forefront. Nothing else takes priority over this. So unless you work with this motivation, you cannot develop a viable and effective and honest adharmic system that actually delivers. Wish we had more time. People who wish to connect with me and discuss these issues furthermore can find me on social media, or maybe contact the communications team. I would love to interact with you. Thank you so much. Ram Ram, Jai Hind. धन्यवाद अमिताभ सोनी जी। अभी हमने भक्ति शर्मा जी और अमिताभ सोनी जी को सुना। जब जो व्यक्ति ने उसको अपने जीवन में जिया है ना, उसकी बात सुनने में अलग ही महत्व है, उसका अलग ही प्रभाव होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में इन्होंने कहा, इन्होंने भी बात कही, यहाँ पे भी हम लोग कई बार चर्चा भी करते हैं कि 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो तत्ववादी होते हैं जो एसेंस को बोलते हैं, पढ़ लिया कहीं से, इधर उधर से पढ़ लिया और उन्होंने सामने बता दिया, और दूसरे होते हैं जो दर्शन करते हैं, जिन्होंने जिया है उसको। तो ये दोनों
लोग इन्होंने अपने जीवन में जो कहा है उसको चरितार्थ किया, तो मैं चाहता हूं कि एक बार ताली से दोनों का स्वागत भी कर दें। इनकी बात से मुझे एक रामकृष्ण परमहंस की एक छोटी सी घटना ध्यान में आ गई। उन्होंने कहा कि जो ज्ञान के ना 3 स्टेजेस हैं। एक है कि जिसने दूध किसी को पता है, दूध तरल होता है, लिक्विड होता है, सफेद रंग का होता है, और वह इस तरह का एक तो ज्ञान की स्टेज है कि दूध के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन है किसी को। दूसरी स्टेज है ज्ञान की, उसमें पता है कि दूध पीने से ये फायदा होगा, उसमें ये केमिकल्स हैं, ये मिनरल्स हैं, ये उसमें तत्व हैं, ये उससे शरीर स्वस्थ होगा। यह दूसरी स्टेज है। और तीसरी स्टेज होती है जिसने दूध पी के उसके लाभ को अपने जीवन में आत्मसात किया है। तो नॉलेज के भी तीनों अलग अलग लेवल होते हैं। जब हम एक्चुअल जिन लोगों ने काम किया उनकी बात सुनते हैं तो हमें ज्यादा अच्छी तरह से उसको समझ आता है। तो मैं चाहूंगा, इनको शुभकामनाएं भी दूंगा कि आगे भी करते रहें। हम और चर्चा भी करेंगे। हमारे बीच में ईशू तायल जी हैं एनएसडीएल के। एनएसडीएल जो डिजिटल इंडिया का सरकार का बहुत बड़ा प्रकल्प है, आगे बढ़ रहा है, पंचायतों को जोड़ना है, पंचायतों को एम्पावर करना है, ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स हैं, उसमें एनएसडीएल का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं चाहूंगा कि वह उसको पंचायतों को कि ई गवर्नेंस और डिजिटल उसका जो इनिशिएटिव है उसके ऊपर एनएसडीएल किस तरह से आगे बढ़ने को सोचता है, तो उसके बारे में हम लोगों का उत्साहवर्धन, ज्ञानवर्धन करें। तालियों से ईशू जी का स्वागत करें। थैंक यू आप कितना 7 मिनट्स इज सफिशिएंट? सर, कम से कम बोलूंगा। हाँ यस 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 7 मिनट। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। इट्स माय इंडीड प्लेजर टू रिप्रेजेंट फिजिकली सम इवेंट आफ्टर 6 month। जब मुझे पता चला था कि मुझे बोलना है तो आई थॉट कि वर्चुअल इवेंट में बोलना होगा, फिजिकल तो हो नहीं रहा। बट फ्रॉम माय कंपनी आई केम टू नो कि फिजिकल इवेंट हो रहा भैया। मैंने बोला फिजिकली अब मेरे को जाना पड़ेगा। तो इनिशियली मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर जो बोलता है ना रेगुलर, उसके अंदर होती कि यार बहुत टाइम से बोला नहीं, तो मेरे को आज 6 महीने बाद बोलने का मौका मिला है। और सर ने मुझे टाइम दे दिया कि 7 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना। तो सर एक अगला सेशन है, उसमें मैं अपना थोड़ा टाइम बढ़वा लूंगा, आपका 7 मिनट्स लेता हूँ। ओके, अब जो टॉपिक दिया गया है वो पंचायती राज सिस्टम ई गवर्नेंस का है। एक्चुअली अमिताभ जी और जो भक्ति जी ने जो बातें कही हैं, उसके बाद अगर मैं पंचायती सिस्टम पे बोलूं तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर वाली बात होगी। भक्ति जी, मैंने आपको सुना, आपके लिए मुझे एक कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि जिनके जज्बों में, जिनके जज्बे ऐसे होते हैं जिन्हें मंजिल की तलाश रहती है, वो समुंदर पे भी पत्थर तैरवा देते हैं। तो आपकी जो गवर्नेंस और जो सरपंच जो आप हैं और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं आप, तो आपको देख के आइडियली लगता है कि भारत में ऐसी बहुत जरूरत है वुमेन एम्पावरमेंट की, क्योंकि वुमेन जो हम सबके घरों में है, और मेरा ये मानना है कि वुमेन मैनेजेस बेटर देन अ मैन। आज घर में, हम सभी के घर में हमारी माता जी जो है, आज भी मेरे घर में मेरी माता जी एक गवर्नेंस के रूप में है। आज भी पापा उनसे बिना पूछे नहीं जाते। और वही सिचुएशन लगभग मेरी है, मेरी भी शादी हो चुकी है। तो वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया, पापा को मम्मी संभालती है और मेरी वाइफ मुझे संभालती है। तो द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आल्सो अप्लाइज इन आवर होममेड्स। जहां तक पंचायती राज सिस्टम की बात है, काफी कुछ बातें कही गई हैं इस बंच से जो हमको काफी नॉलेज देती है। जो 1993 में जो 73rd अमेंडमेंट के रूप में जब इसका आधारशिला रखी गई थी, तो उसमें एक जो गांधी जी ने बताया था कि जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल इशू है वो उसी जगह सॉल्व होना चाहिए जहां से वो उभरा है, जहां से वो उभरा है। अगर गांव में कोई ऐसा इशू है सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल, वो वहीं सॉल्व होना चाहिए। इसके लिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, एंड दीज पंचायती राज एम्पावर्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अन्यथा एमएलएज एंड एमपीज हैं संभालने के लिए, तो व्हाई वी नीड अ पंचायत? बिकॉज ऑफ दिस the issue which evolve in the similar place should be get resolved by the place only, by the person of that same place.
So this is the main reason why Panchayati Raj is there. अब पंचायती राज में जो भी गांव आते हैं, जो भी तहसील आती हैं, उनका एम्पावरमेंट काफी जरूरी है। और जो फाइनेंशियल सेक्टर है स्पेशली, अगर मैं सेबी की बात करूं, एनएसडीएल की बात करूं या स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं, तो एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट भी बहुत जरूरी है। आज हमारे देश में 6%, ओनली 6% पीपल इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मेजर चंक is not empowered or not financially educated to invest in that. So these organizations like MCA and SEBI exchanges do visit villages, वहां पे लोगों को ज्ञान देने के लिए कि इक्विटी मार्केट क्या है, या फाइनेंशियल सेक्टर क्या है, बैंकिंग चैनल क्या होता है, इंश्योरेंस मार्केट क्या होता है, ये सारी चीजें बताने के लिए एम्पावरमेंट किया जाता है। कुछ चुनिंदा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले सेबी द्वारा भी एक सेबी स्मार्ट ट्रेनर के रूप में कई नियुक्तियां हुई हैं, वो इन्हीं तहसील गांव में लोगों को समझाने के लिए। और एनएसडीएल भी इस तरह के कुछ प्रोग्राम चलाती हैं जहां पे वहां का लोकल सदस्य चुना जाता है लोगों को एम्पावर करने के लिए फाइनेंशियली, कि आप बैंकिंग सेक्टर में क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है। ये बहुत दूर की सोच है, लेकिन फाइनेंशियल एम्पावर विलेजर ही आगे देश का भविष्य बना सकता है, क्योंकि अगर वो खुद के फाइनेंस मैनेज कर सकेगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज ग्रोथ। सो दिस वाज द वन थिंग। अनदर थिंग दैट अभी कुछ टाइम पहले आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज उन्होंने संबोधित किया था पंचायती राज पे। कुछ 25 years इट वाज कंप्लीटेड, सो वेरियस पंचायत एंड द सरपंच वाज अटैच्ड देयर। तो मैंने वो स्पीच सुनी थी, तो उसमें यही कहा गया था, और कोरोना के टाइम पे द रोल ऑफ अ पंचायत हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट। और जो जैसे कि पहले स्पीकर्स ने कुछ कहा था कि फार्मर बिल या कोई सा भी कानून है उसको समझाना पड़ता है, उस समझाने की प्रक्रिया में पंचायत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो पंचायत का ओवरऑल सिस्टम है काफी इम्प्रूव होगा, और ये गांव जो हमारे होते हैं हमारे देश की नब्ज होते हैं, तो नब्ज हमारी सही होगी तो हमारा देश हमारा सही होगा। इसी के साथ मैं अपनी विराम देता हूं। सर, ज्यादा टाइम नहीं लिया मैंने, एज आई कमिटेड। नहीं, आपके अभी 1.25 मिनट है वैसे। चलो अगले सेशन में आइए। धन्यवाद। ओके, ओके। आई डिडंट नो कि आपने घड़ी भी लगा रखी है। नहीं। देखिए, धन्यवाद इशू तायल जी। एनएसडीएल का बहुत बड़ा रोल है डिजिटाइजेशन करने में, कैपिटल मार्केट्स में जितना बड़ा रिवॉल्यूशन आज एनएसडीएल ने किया है वो बहुत बड़ा काम है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ, और आने वाले समय में डिजिटल इंडिया में भी पंचायतों के लिए और कंप्यूटर सर्विस सेंटर्स वगैरह में भी शायद काफ़ी रोल एनएसडीएल प्ले कर रहा है, कर सकता है। तो आगे हम बढ़ेंगे। इन्होंने एक बात कही, मुझे खाने के बाद वैसे ही थोड़ी सी बैठना बड़ा मुश्किल होता है, तो लाइटर नोट पे मुझे एक चीज ध्यान आ गई। तायल जी ने बोला था कि मैंने एक बार एक से पूछा, भाई एक पड़ोस में रहते थे, या हमारे यहाँ तो पति पत्नी में बड़ा झगड़ा होता, तुम्हारे यहाँ कोई झगड़ा ही नहीं होता, कोई शांति बिल्कुल है। तो उसने कहा, भाई हम लोगों ने ना बिल्कुल रोल जो है वो आइडेंटिफाई कर रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। उसने कहा क्या? मैंने पूछा क्या? बोला पत्नी तय करती है कि बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे, खाना कैसे बनना चाहिए, घर की फर्निशिंग कैसे होनी चाहिए, जितनी रोजमर्रा की चीजें वो पत्नी देखती है। तो मैं कहा फिर तुम क्या करते हो? बोला मैं ध्यान रखता हूँ कि इंडिया की अमेरिका के साथ क्या रिलेशन होने चाहिए, चाइना के साथ ट्रेड पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इसलिए हमारे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है, तो इसलिए हमारे को झंझट नहीं होती। आगे हम चलते हैं। देखिए, आज का सबसे महत्वपूर्ण रोल था ये जो पंचायती राज कोड है, और जैसा बताया हितेंद्र जी ने शुरू में भी कि श्याम जी ने उस वक्त इनिशिएट लिया था ये पंचायती राज कोड के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इनिशिएटिव भी है। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो पंचायत अपने आप में पूरी जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है वह एम्पावर होगी। 2-3 कोड इंस्टीट्यूट के
हैं, मेरे ख्याल से श्याम जी उस पे ज़्यादा इलेबोरेटली अपना बात रखेंगे। पंचायती राज कोड है, एंटी ब्राइबरी कोड है, अब इंस्टीट्यूट ने आशीष जी के नेतृत्व में इसका 12 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन भी कर दिया। और मैं चाहूँगा कि आज यहाँ से ये सरकार को मजबूती से श्याम जी की आवाज़ में ये सरकार तक जाए कि इस कोड को, जो वॉलंटरी कोड है, आज पंचायत में इम्प्लीमेंट कर दें। और भक्ति जी, आप तो हो ही सकता है, आपसे तो उम्मीद ही करते कि अपने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करें। टीम वर्क का कितना महत्व होता है, आशीष जी, फिर उस रंजीत जी, इन लोगों ने उस इनिशिएटिव को इतना आगे बढ़ा के श्याम जी के नेतृत्व में यह जो काम शुरू हुआ उसको यहाँ तक ले आया और आगे भी ले जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि श्याम जी उस पूरी बात को रखें कि जो मेन पंचायत का रोल होता है, डिसीजन मेकिंग में आम जनता की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो सकती है इस कोड से, उसको हम रखें। और 15 मिनट का हमारे पास टाइम है, उसके बाद 15 मिनट हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक बार श्याम जी का जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण काम है, इसको ये आगे भी ले जाएंगे। नमस्कार। 9 महीने बाद मुझे भी माइक मिला है। मन तो कर रहा है कि छोड़ू नहीं इसको। ये 15 मिनट का टाइम है इनका। इनमें साक्षी दिखा है। मेरे ख्याल से 52 साल के इंस्टीट्यूट के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस से बाहर हट करके, और संस्थान ने एक हिम्मत करी है एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करना जिस पे जनरली हम लोग यूज टू नहीं है, ग्रास रूट टू ग्लोबल। हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं। वो कहते हैं ना आजकल अंबानी अडानी, तो हम अंबानी अडानी के आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं। पहली बार कोई कल्पना कर सकता है, लेकिन ये हकीकत है। हो सकता है शायद पहली बार इंस्टीट्यूट पिछले 40-50 सालों में ऐसे गांवों के प्रेसिडेंट देख रहे हो, आशीष जी जैसे, जो गांव से आ रहे हैं, शायद इसलिए, या इतने यंग प्रेसिडेंट आ रहे हैं शायद इसलिए इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन आशीष इस चीज के लिए बधाई का पात्र है, इस हिम्मत के लिए और इस हाइब्रिड कन्वेंशन के लिए। बहुत हिम्मत की काम है। मेरी बेटी मुझे कहती है कि पापा आप बहुत डरते हो कोरोना से। मैंने कहा कैसे बेटा? बोला देखो बाजू वाले अंकल, मेरी जो फ्रेंड है, उसके पापा तो मास्क लगाते ही नहीं है, आप मास्क लगाते हो, आप बहुत डरते हो। मैंने उसको समझाया कि बेटा सावधानी और डर में फर्क है। मैं सावधानी रख रहा हूँ, डर नहीं रहा हूँ। और आजकल तो आशीष जी को पता है, वो मेरी बात सुन के हंस देंगे, यदि गलती से भी किसी काउंसिल मेंबर ने मास्क नहीं लगाया तो सोशल मीडिया पे उनका क्या हालत होगा वो आप समझ सकते हैं। तो हमें सावधानी से इस कन्वेंशन को, आप लोग अटेंड कर रहे हैं, सावधानी से अटेंड करना है। विषय पे आते हैं, पंचायत गवर्नेंस कोड। भक्ति जी ने कहा, अब सोनी जी ने कहा कि पंचायतें अब वैसी नहीं रही है। मैं गांव से आता हूं, मेरी पढ़ाई लिखाई सारी गांव में हुई है। मैंने देखा है एक नैरेटिव हमारे दिमाग में बना दिया गया। इसमें मूवीज का, हिंदी मूवीज का बहुत बड़ा रोल है, एक आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, सेट ऑफ आइडियोलॉजी, कि जब हम जमींदार की साहब जो बनिया है वो बेईमान होता है, साहूकार बेईमान, जमींदार, किसान गरीब सा होता है, दयनीय है, लाचार है, वकील प्रोफेशनल बेईमान होते हैं, बदमाश होते हैं। एक नैरेटिव बना दिया हमारे दिमाग में। जब हम गांव की बात करते तो नैरेटिव है गरीबी, अशिक्षा, उनमें ज्यादा वो नॉलेज नहीं है, इंटेलिजेंट लोग नहीं है, सरपंच, अंगूठा छाप, ये नैरेटिव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे दिमाग में नैरेटिव सेट हो गया कि पंचायत का मतलब कुछ नहीं, अंगूठे लगते हैं वहां पे। तो ऐसा नहीं है। ये एग्जाम्पल है, आज का जो डाइस है एग्जाम्पल। आप देखिए भक्ति जी, इनको कोई जॉब की कमी थोड़ी है। अमेरिका से आकर के गांव में जाने की क्या जरूरत है भाई? हम कंपनी सेक्रेटरी होकर के गांव में नहीं जाना चाहते। ये अमेरिका से आई है। छवि राजावत पिछली बार हमारे राजस्थान से कार्यक्रम में आई थी। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही आ रहे, जो गांव के लोग हैं उनके बीच में भी हेल्दी कंपटीशन शुरू हो चुका है। श्याम सुंदर पालीवाल जी, आपने सुना होगा, अमिताभ बच्चन के शो में आए थे, पीपलांत्री जो पंचायत है। पोपट जी जो आज आने वाले थे।
ये वो लोग हैं, मैंने देखा गांव में एक हेल्दी कंपटीशन, सोशल मीडिया के माध्यम से हेल्दी कंपटीशन। आज मैं सरपंच हूं तो मुझे पता है मेरे बाजू वाले गांव में क्या हो रहा है, या नागपुर के गांव में क्या हो रहा है, या इंदौर के गांव में क्या हो रहा है। मुझे भी वैसा ही बनना है, मुझे ही वैसा काम करना है। वो हंगर है गांव में, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में वो हंगर है। वो चाहते हैं कि कोई लोग हमारी हैंड होल्डिंग करे, हमारा सपोर्ट करे और हमें वहां तक लेकर के जाए। उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोगों को आगे आना ही होगा। ये हमारी ड्यूटी भी है और हमारे पास चॉइस भी नहीं है। मैं दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, हमारी ड्यूटी भी है और हमारे पास चॉइस भी नहीं है। ड्यूटी इसलिए कि हम प्रोफेशनल के साथ सिटीजन भी हैं, और हमारे पास चॉइस इसलिए नहीं है क्योंकि हम कंपनी सेक्रेटरी थे। मैं हमेशा कहता हूं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान में कुछ समय के लिए इस कंपनी शब्द को भूल जाइए, आप सिर्फ सचिव को याद रखिए, भूल जाइए, फॉरगेट इट कि वी आर द कंपनी सेक्रेटरीज, वी आर द सेक्रेटरीज। हम कंपनी सेक्रेटरी थे, उसको हमने उससे पार आ चुके हैं। अभी हम कॉर्पोरेट सेक्रेटरी बन चुके हैं और थोड़े दिनों में हमें उससे भी आगे जाना है, उसको भी उससे भी आगे जाना है, कॉर्पोरेट सेक्रेटरी से भी आगे जाना है। हमें गवर्नेंस सेक्रेटरी की तरफ जाना है, हमें नेशनल गवर्नेंस की तरफ जाना है, हमें नेशनल गवर्नेंस की बात करनी है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू थिंक फॉर द ग्लोबल गवर्नेंस। नेशनल गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस, तीन शब्द फ्रेंड्स दिमाग में रखिए। चेंज आवर माइंडसेट। ए, वी आर द गवर्नेंस सेक्रेटरीज। बी, थिंक फॉर द नेशनल गवर्नेंस। एंड सी, एट द सेम टाइम थिंक फॉर द ग्लोबल गवर्नेंस। ये तीन चीजें, माइंडसेट, हमारी दृष्टि को आज से बदल लीजिए आप लोग। वक्त आ गया है, छोड़ दीजिए कंपनी सेक्रेटरी को। मुझे पक्का भरोसा है रंजीत, आशीष और इनकी जो पूरी टीम है, हितेंद्र जी, समय के साथ हमारे जो अमेंडमेंट होगा कंपनीज एक्ट में, डिस्कशन चल रहा है, ये नाम भी हमारा चेंज हो जाएगा। बट उसके लिए हमें हमारे को प्रोजेक्ट करना होगा दोनों तरफ से। सरकार को भी सोचना होगा, हमें भी सरकार के सामने प्रोजेक्ट करना होगा कि सर हम गवर्नेंस सेक्रेटरी हैं, हम नेशनल गवर्नेंस के लिए काम कर रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता? मैं तो एक स्टेप आगे की बात कर रहा हूं। आप देखिए, अभी मोदी गवर्नमेंट ने ज्वाइंट सेक्रेटरीज की लिटरल एंट्री करी थी, आप लोगों ने देखा होगा। डायरेक्ट 12 ज्वाइंट सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर्स को डायरेक्ट उन्होंने लिया था। ये जो सेक्रेटरी है, बेसिकली हमसे बेटर कौन हो सकता है? सरकार के अंदर जो सेक्रेटरी का रोल है, वो कंपनी सेक्रेटरी से बेटर कौन प्ले कर सकता है? आप मेरे को बताइए। जो डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आकर के जब मंत्रालय में सेक्रेटरी बन करके चला सकते हैं, हमारी तो जो क्वालिफिकेशन है उसमें हमने तो पूरा मैकेनिज्म और सिस्टम समझा है सेक्रेटरियल का। यदि उसके साथ हम चैरिटी गवर्नेंस, उसके साथ पंचायत गवर्नेंस, उसके साथ हम स्पोर्ट्स गवर्नेंस, इलेक्शन गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, यदि इन सब चीजों का भी हम लोगों को नॉलेज हो जाए तो वो दिन दूर नहीं है जब सरकार में आईएएस के रिक्रूटमेंट के अंदर कंपनी सेक्रेटरीज की डायरेक्ट एंट्री होगी। ये नेशनल गवर्नेंस, इस विजन के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। जब हमने पंचायत गवर्नेंस की चर्चा की, आई स्टिल रिमेंबर इन 2017 व्हेन आई केम आउट विद दिस आइडिया कि हम लोगों को व्हाई नॉट वी थिंक फॉर समथिंग डिफरेंट। तो लोगों को विद इन ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लोगों को लगा यार दिस इज द कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट, इट्स अ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट, क्यों हम लोग ये गांव पंचायत और इन सब की बात कर रहे हैं? लोगों को जेल करने में जोर आया, इनकलकेट करने में तकलीफ हुई। लेकिन हमने, हमारी टीम ने जो भी थी, आशीष, रंजीत, ये जो भी उस समय मेरे साथ थे, सबने सपोर्ट किया। वी कम आउट विद दिस कोड। बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारी इस कोड में कमियां हो सकती है, मैं नहीं कहता इट्स अ परफेक्ट काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट, बहुत सारी कमियां हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने कोड बनाया। बहुत सारे सरपंच, पंचायतों ने, नगर निगम, नगर परिषद, जो सेल्फ गवर्नेंस बॉडीज है, इन्होंने इसको वॉलंटरीली अडॉप्ट किया है। भक्ति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, वॉलंटरीली इस कोड को अडॉप्ट किया है। देखिए, हर बड़े जो सोच है, जो बड़े जो विजन है, उसकी शुरुआत ऐसे ही होती है। विपिन आचार्य जी ने कोई बहुत समय पहले सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में सोचा होगा, वो दुनिया में नहीं है, पर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जब उन्होंने सोचा होगा तो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी कि किसी दिन सेक्रेटरियल ऑडिट बिकम अ रियलिटी। लेकिन वो 10, 15, 20 साल बाद जाकर के वो रियलिटी हुई। आज जो हम नेशनल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये चीज कल की कल आए, बट एक दिन इट बिकम अ रियलिटी। उसके लिए जो मेघवाल जी ने भी कहा, जो अभी मितेंद्र मेहता जी ने भी कहा, हमारे को चर्चा करना जरूरी है। ये जो प्रोग्राम है, इसको इस थीम पे रखने का, ये पंचायत को, इस, आप लोगों को लग रहा होगा क्यों गांव जो कहते हैं सरपंच, दलित, किसान, इन सब की बातें हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं आप लोग चर्चा करो, आपस में चर्चा करो, नेशनल गवर्नेंस पे चर्चा करो, पंचायत पे चर्चा करो, चैरिटी गवर्नेंस पे, इन सब पे चर्चा करो, चर्चा करो। आप जो जिस गांव से हो, मैं एक टास्क देना चाहता हूं, हम किसी न किसी गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं, एक दिन महीने में एटलीस्ट या साल में एक बार सबसे पहले आप लोग अपने गांव जाओ, गांव जाकर के वहां के सरपंच से मिलो, उससे बात करो, उससे समझो। आपको उस गांव में
अपॉर्चुनिटी दिखेगी। आत्मनिर्भर भारत का जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, उसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो गांव के लिए। आप इंडस्ट्री के बोर्ड में बैठते हैं, आप देखो उनका जो थॉट प्रोसेस है वो गांव की तरफ जा रहा है। एग्रो इंडस्ट्री आने वाला फ्यूचर है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। प्रोड्यूसर कंपनी हम सब लोग बनाते हैं। सरकार ने प्रोड्यूसर कंपनी के लिए कितना बड़ा बजट रखा है, कौन बनाएगा? हम लोग बनाएंगे ना। गांव में जो वोकल फॉर लोकल है, उसके लिए गांव वाले जो लोग हैं वो आपको प्रोडक्ट बना देंगे। उसको मार्केट कौन करेगा, उसको फंडिंग कौन दिलवाएगा, उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कौन दिलाएगा? हम लोग दिलाएंगे। गांव में भी बड़े व्यापारी हैं, गांव के पास, गांव में पैसा है, गांव में बड़े किसान है, गांव में बड़े व्यापारी है, लेकिन उनको उस प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए उनको प्रोफेशनल हैंड होल्डिंग चाहिए। तो मैंने कहा ना, ड्यूटी भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। तो हमें भी इंडस्ट्री के साथ, हमें भी सरकार के साथ, हमें भी इन नौजवानों के साथ गांव की तरफ जाना होगा, गांव की तरफ चलना होगा। अब बात करते हैं पंचायत की। एक नैरेटिव हमारे दिमाग में और है, हमें ऐसा लगता है कि पंचायत का मतलब 73rd अमेंडमेंट ही है। ऐसा नहीं है। 73rd अमेंडमेंट 92 बाद में 93 में जो इंप्लीमेंट हुआ, उससे तो इसको कोडिफाई किया, फॉर्मलाइज किया। जब हम पंचायत की बात करते हैं तो हम गांधी जी से शुरू करते हैं और गांधी जी पे खत्म कर देते हैं कि स्वराज। ऐसा भी नहीं है कि गांधी जी ने ही पंचायत का कंसेप्ट हम लोगों को समझाया था, नहीं, ये गलत। आप लोगों को सरप्राइज होगा, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये आईएएस में एक सवाल आता है कि इंडिया में फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है? कोई बताएगा मेरे को? एनी आइडिया हु इज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? एनी आइडिया? लॉर्ड रिपन इज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। वो एक अंग्रेज, ब्रिटिश, उसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है। हमें लगता है कि नहीं, अंग्रेज, उसने इस सिस्टम को उसने भी आगे बढ़ाया। गोपाल जी ने बिल्कुल सही कहा। हमारा आप देखिए ना, अब जातक कथाएं पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, वैदिक पीरियड, सब जगह ग्राम, जनपद, गणपद, सभा, समिति, इन सब का उल्लेख आता है। तो ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। इवन तो कॉर्पोरेट भी कोई नया कंसेप्ट नहीं है। 800 BC के अंदर पहली कंपनी हिंदुस्तान में थी, इट वाज नोन एज अ श्रेणी। इवन तो जो ब्रिटिश कंपनीज का कंसेप्ट बाद में आया था। आप हमारा जो स्क्रिप्चर्स है, हमारी जो लिटरेचर है, आप उनको पढ़िए तो आप देखिए जिस गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं वो सारा गवर्नेंस वहां पे था। तो हम लोगों ने उस गवर्नेंस को, चाहे एंशिएंट पीरियड हो, चाहे मिडाइवल हो, चाहे ब्रिटिश पीरियड हो, उस चीजों को गांधी जी ने बढ़ाने में योगदान दिया था। इवन तो आप देखिए 40th जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 40 है जो डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स है, बल्कि उसमें कहा गया पंचायतों को, उसमें स्टेट पॉलिसी में इसकी पंचायतों की बात करिए। इवन तो 1957 के अंदर सबसे पहले बलवंत मेहता कमिटी ने 3 tier सिस्टम को रिकमेंड किया। एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ बीइंग अ राजस्थानी, दो वी आर द इंडियन फर्स्ट, बट बीइंग अ राजस्थानी, राजस्थान में 1959 के अंदर नागौर जो जिला है उसकी पंचायत वाज द फर्स्ट पंचायत जिसने वॉलंटरीली 3 सिस्टम अडॉप्ट किया था, एंड देन फॉलोड बाय द आंध्र प्रदेश। उसके बाद 73rd अमेंडमेंट आया था। तो कहने का मतलब इतना कुछ हमारे दिमाग में नैरेटिव सेट कर दिया गया है, मिसकंसेप्शन है। 7 लाख पंचायतें हैं, 7 लाख गांव है, 2.5 लाख पंचायतें हैं और 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है। कितना बड़ा है? इतनी तो कंपनियां नहीं होगी। हाँ, कितना बड़ा एरिया है। कंपनी में तो छोटा सा काम, उस गांव में तो सब है। आपका हर सर्विसेज, जीएसटी, आईपीआर, ये वो सारी सर्विसेज आप लोग दे सकते हो। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितनी बड़ी नेशनल ड्यूटी है जो हम पंचायत गवर्नेंस के माध्यम से कर सकते हैं। और आशीष जी ने तो एक कदम, जनरली एक चीज और है, क्योंकि हमारा घर का प्रोग्राम है और हमारे घर के मेंबर सुन रहे हैं, इसलिए मैं जो मन में है वो बात कर रहा हूं आप लोगों से। जनरली हमारे यहाँ क्या होता है कि एक प्रेसिडेंट गया तो आने वाला प्रेसिडेंट उसको डब्बे में डाल देता है, उसकी रीति नीति सबको उठा के नए लोगों बनने शुरू हो जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है, को नए लोगों बनने शुरू हो जाते हैं। हाँ, नागेंद्र जी सुनो, सही कह रहे हैं। वो उठा के उसको डस्टबिन में डाल देता है। पुराना वाला गया, हमारी प्रीति मैडम है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैडम, नया लोगो बनाओ, चलो शुरू करो, नया विजन बनाओ, नई बातें करो। आई थिंक समथिंग दैट आई ऑब्जर्व प्रोबेबली फर्स्ट टाइम, क्योंकि निसार सर बैठे हैं, कल को वो डांट देंगे मेरे को, प्रोबेबली फर्स्ट टाइम, सो मैं थोड़ी कॉशियस वर्ड यूज कर रहा हूं कि कंटिन्यूसली किसी प्रेसिडेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया और आने वाले प्रेसिडेंट्स उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप देखिए इंस्टीट्यूट के इतिहास में बहुत कम होता है कि 2017 में कुछ लोगों बने और आज भी यहां पे लगे हुए हैं। ये बड़ी बात है। और इसके लिए
बहुत बड़ा कलेजा चाहिए सर। राजनीति में अपने पुराने वाले व्यक्ति के बनाए हुए कामों को आगे चलाने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, और सही मायने में दिस इज द लीडरशिप, यही असली लीडरशिप है। और जो आज आशीष भाई, रंजीत भाई ने जो जो दिखाई है, आई थिंक दिस इज अ डिफरेंट सेट ऑफ और डिफरेंट काइंड ऑफ लीडरशिप। और ये देखिए गांव के लोगों में ये है बाय बर्थ बाय बॉर्न, ये दिस इज अ बॉर्न लीडरशिप। ये जो गांव के छोटे छोटे लोग हैं जो संस्था में आज आए हैं, इनकी लीडरशिप और इनका विजन देखिए कि उन्होंने इस धारणा को चेंज किया है कि विजन व्यक्ति का नहीं हो, जो हम कहते हैं ना विजन व्यक्ति का होना चाहिए, नहीं, विजन व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, विजन संस्था का होना चाहिए, विजन ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए। एंड दैट बीइंग अ रीजन, I think we have constituted one committee, probably I don't know by tomorrow or today or tomorrow we are going to release. Now we are coming with vision 2030 because जो टाइम है ना, हमने जब 2017 में विजन 22 की बात करी थी, हमने सर 2022 के आसपास, बिकॉज जो इंडिया जो 2022 है, आजादी का 75वां साल है, तो हमने एक विजन बनाया था। सारी जो चीजें टेक्नोलॉजी, एआई, ब्लॉकचेन, ये जितना भी जो एडवांस टेक्नोलॉजी उन पे बात करी थी, हमने कल्पना नहीं करी थी कि जो हम 2022 या 23 में विजुलाइज कर रहे थे, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना 2020 में वही स्थिति आ जाएगी जो हम 23 या 24 में फोर्स कर रहे थे। आज हमें 2030 की बात करनी होगी, आज हमें 2050 की बात करनी होगी कि 2030 के अंदर हम, मेरा ऐसा मानना है कि 2030 में हमें 1 लाख मेंबर से ज्यादा की जरूरत नहीं है। 1 लाख पे कैसे रोकना है? 2030 से 2040 के बीच में मेंबरशिप नहीं बढ़ानी है। 2040 से 2050 के बीच में वापस स्टूडेंट लाए, तो 2050 की बात हमें 2020 में करनी होगी। और भारत के दृष्टिकोण से 2020 का बहुत बड़ा महत्व है। ये इस कोविड को आप ये मत समझिए कि हमने इस वेस्टेज ऑफ टाइम और ये साल बहुत खराब रहा, ये भारत के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा साल है। 19वीं सदी सबको पता है किसकी थी? अंग्रेजों की थी। 20वीं सदी अमेरिका की थी। 21वीं सदी एशिया की होगी और एशिया में भारत की होगी। और मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? हमारे जितने भी, अभी जो आपने मिशन की बात करी गोपाल जी भाई साहब ने, स्वामी विवेकानंद ने 1894 में कह दिया था, जब अंग्रेजिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बेइज्जती की, तो उन्होंने कहा कि आज मेरी बेइज्जती कर लो, 21वीं सदी भारत की होगी। स्वामी अरविंद ने यह बात कही थी। और सबसे बड़ी बात, अब्दुल कलाम साहब ने 98 के अंदर अपनी बुक लिखी थी इंडिया 2020। वो 22 भी कर सकते थे, 25 भी कर सकते थे, 2030 भी तो कर सकते थे 98 में, बट 98 में उन्होंने इंडिया 2020 की बात करी। सोचिए भारत के दृष्टिकोण से ये 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आशीष को कहता हूं, कई बार होता ना कि भाई आप प्रेसिडेंट बने, ये इसको तो 9 महीने से माइक ही नहीं मिला, प्रोटोकॉल राजनीति में क्या भाई 10 लोग आगे पीछे घूमे। तो मैंने कहा भाई ये इतिहास हमें याद रखे ना रखे, आपको जरूर याद रखे। बोला कोरोना वाला प्रेसिडेंट कौन था? आशीष गर्ग। तो हर चीज के 2 पहलू है, हम कौन सा वाला पहलू देखना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं। तो ये जो पंचायत कोड है, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग इसमें पढ़िए, इस पे एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन शुरू करिए, ठीक है? अपने सरपंच जो रेस्पेक्टिव पंचायत है या नगर पालिका नगर, उनके साथ जाकर के चर्चा करिए, बात करिए, उनके आइडियाज लाइए। और मैं चाहता हूं कम से कम 5 या 8 बार हम लोग इसके अंदर चेंज करें। इसके अंदर जितने ज्यादा हम लोग चेंजेस करेंगे उतना अच्छा है कि साल या 2 साल के अंदर हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर के आए। और मेरा सपना है, मैंने कहा ना, कई बार मैं सपने लेते रहता हूं। एक सपना मैंने कहा ना कि हमारे कंपनी सेक्रेटरी का डायरेक्ट आईएएस के अंदर सिलेक्शन हो। मेरा दूसरा सपना पंचायतों को लेकर के, आज देखिए लिस्टेड कंपनी का सारा डेटा एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है कि नहीं? तो क्यों ना एमसीए के ऊपर डेटा अवेलेबल है, तो क्यों ना हम लोग एक 1 नेशन 1 पंचायत सिस्टम का कंसेप्ट गवर्नमेंट को ला करके दे। 1 नेशन 1 पंचायत सिस्टम। मैं राजस्थान में सीकर में बैठा हूं, जयपुर में बैठा हूं, मुझे ऑनलाइन पता लगे कि भक्ति जी के गांव में, खेड़ी अब्दुल्ला में किस तारीख को कब मीटिंग, और भक्ति जी क्या क्या एजेंडा लेकर के आ रही है, किन लोगों ने सहमति दी, किन लोगों ने असहमति दी, उनके मिनट्स के सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाए। सोचो डिजिटल गवर्नेंस या गवर्नेंस के क्षेत्र में कितनी बड़ी बात हो जाएगी। ऐसा हम कर सकते हैं। ये विजन हमारे इंस्टीट्यूट का इस समय होना चाहिए कि हम 1 नेशन 1 पंचायत सिस्टम की तरफ इंस्टीट्यूट को लेके जाए। और सरकार को ये 1 नेशन 1 पंचायत सिस्टम यदि हमने दे दिया, तो जो राजीव गांधी जी कहते थे ना, 1 रुपया जाता है और 15 पैसे मिलते हैं। सोचो 15 पैसे ही गांव में जाते हैं, और 15 पैसे में भी एक्चुअल में जो अंत्योदय है, जो अंत में जो बैठा है, उसको तो कितने मिलते होंगे, वो तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जो 1 रुपए का 1 रुपया जाए, और जो सबसे लास्ट में बैठा है उसको भी पूरा 1 रुपया मिले, और उसका जो एंड यूटिलाइजेशन है वो भी 1 रुपया हो। इस पूरे समीकरण में हम लोग हमारा रोल प्ले कर सकते हैं। इसमें भाई साहब हमने एजेंडा, मैं बताऊंगा मैडम आपको, इसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड कि गांव में जो मीटिंग होती है उसका एजेंडा कैसा होना चाहिए,
मिनट्स कैसे होनी चाहिए, एटीआर कैसे बननी चाहिए, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को हम एटीआर से कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, एजेंडा से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सबका फॉर्मेट दिया हुआ है। हमने पूरा सर्वे किया, हमने भारत की सारी पंचायतों में, लगभग काफी पंचायतों में हमारी टीम गई थी उस समय। हमने देखा जैसे केरला है, केरला की पंचायत बहुत मतलब एडवांस स्टेज पे है। कुछ कुछ स्टेट ऐसे मैं नाम नहीं लूंगा, वहां इतना सिस्टम नहीं है। 73rd के बाद हर स्टेट का अपना अपना सिस्टम है, मिनट्स को लेके, एजेंडा को लेके, मीटिंग को लेके, एडजॉर्नमेंट को लेके, कोरम को लेकर के, लेकिन सब में फर्क है। केरला का अपना सिस्टम है लेकिन अलग है, कहीं 7 दिन का नोटिस है, कहीं 15 दिन का नोटिस है, कहीं 21 दिन का नोटिस है, सिस्टम अलग अलग है। हमें वो यूनिफॉर्म सिस्टम लेकर के आना होगा। फ्रेंड्स, इस दिशा में हम लोगों को, ये कोड है, आप लोग पढ़िएगा और डिस्कस करिएगा। क्विकली, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल गवर्नेंस, एक चीज और, आज ये शायद इसको चैरिटी गवर्नेंस का भी आशीष ने इसको 12 लैंग्वेज में किया है। चैरिटी, अगेन सोनी जी हमारे साथ है, ये भी दूसरा बहुत बड़ा एरिया है नेशनल गवर्नेंस की तरफ, ये चैरिटी गवर्नेंस। आप डेटा देखिए, लगभग 35 लाख हमारे पास चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में। 10% इंस्टीट्यूट्स जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस है, मतलब कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने ऑडिटेड अकाउंट्स फाइल ही नहीं करते। सिर्फ 10% ने फाइल किया, 90% तो फाइल ही नहीं करते। ये रिसेंट कुछ डेटा मैंने देखा था। आप सोचो, अभी कोविड में आपने एक चीज गौर करी होगी, हमारा देश का कितना लैंड इन लोगों ने कोड़ियों के भाव में ले रखा है। लेकिन कोरोना में हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी तो उनकी ड्यूटी थी ना कि जिन्होंने सरकार से फ्री में या सब्सिडाइज रेट पे लैंड ले रखा है, उनको इलाज भी तो सस्ते में करना चाहिए था। किया उन लोगों ने? नहीं किया। क्या ये गवर्नेंस का लैप्स नहीं है? मैंने जमीन फ्री में ले रखी है, फ्री जमीन पे, सस्ती जमीन पे हॉस्पिटल बनाया, लेकिन मैं चार्ज कितना कर रहा हूं? इतना हाई चार्ज कर रहा हूं। क्या उस हॉस्पिटल वाले की ड्यूटी नहीं है? हमारा राइट है कि भाई तुमने सरकारी जमीन ली है, हमारी जमीन ली है, इस जमीन पे हॉस्पिटल बनना है, आपको सस्ते में हमें इलाज देना पड़ेगा। ये गवर्नेंस फेल्योर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सब सरकारी जमीनों पे बने हुए हैं, लेकिन शिक्षा देखो, प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूशन है सरकारी जमीनों पे बने हुए हैं, सब्सिडाइज लैंड, लेकिन वो शिक्षा देखो कितनी महंगी है। ये गवर्नेंस। तो वहां पे हम लोग प्रोफेशनल क्या रोल प्ले कर सकते हैं, एंड यूटिलाइजेशन पे हम लोग क्या रोल प्ले कर सकते हैं। आप देखो, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस अभी ई फॉर्म में नहीं है। उन अगेन चैरिटेबल सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस को, चाहे सोनी जी का ऑर्गेनाइजेशन हो या कहीं का भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक से पैसा लेते हैं, कॉर्पोरेट, अल्टीमेट कॉर्पोरेट का सीएसआर का पैसा भी किसका? पब्लिक का पैसा है भाई। पब्लिक का ही पैसा हो ना, सीएसआर का पैसा उसको देना है। तो जहां से भी पैसे लेते हैं, इनका भी पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म पे ये आना चाहिए। और लास्ट में मैं गोपाल जी भाई साहब के साथ, गोपाल जी भाई साहब का आशीर्वाद मेरे को व्यक्तिगत रूप से तो रहा ही है, संस्था को आपका आशीर्वाद हमेशा रहा। हमने एक कॉर्पोरेट एंटी ब्राइबरी कोड, आप देखिए, ये रिलीज किया था, और इसके लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का गोपाल जी को और मेरे को पर्सनल एप्रिसिएशन लेटर मिला है, जो इसमें लिखा, प्राइम मिनिस्टर ने इसको अप्रिशिएट किया। आप देखिए, हम लोग हमेशा करप्शन की बात करते रहते हैं, करप्शन में हम रिसीविंग साइड की बात करते हैं, हम सप्लाई साइड पे क्यों नहीं फोकस करते? रिसीविंग साइड तो कितना, 3 करोड़ लोग, 4 करोड़ सरकारी एम्प्लॉय, 5 करोड़। यदि हम सप्लाई साइड के ऊपर कंट्रोल करें तो करप्शन को कितना हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हमने प्राइवेट करप्शन पे सोच ही नहीं रहे। कई बार हम लोगों को लगता है ये तो प्राइवेट है, मेरी प्राइवेट कंपनी है, मेरा जो जनरल मैनेजर है वो ठेकेदार से पैसे खा रहा है, जनता को क्या फर्क पड़ रहा है भाई? जनता को फर्क पड़ रहा है भाई, क्योंकि वही ठेकेदार किसी न किसी गांव के, भक्ति जी जैसे किसी गांव जहां की सरपंच है, वहां की सड़क का ठेका लेगा, और उस ठेके में वो जो दलाली खाई है उसका सीधा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट वहीं आएगा। आप समझो, तो प्राइवेट करप्शन का सीधा सीधा इंपैक्ट है भाई। तो यदि हम सप्लाई साइड के करप्शन को रोक लें तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। विदेशों के अंदर ऐसा ब्राइबरी कोड है, एंटी ब्राइबरी कोड। भारत में आवर इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट, जो तीनों कोड है, आवर इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट जिसने इस तरह की हिम्मत करी है, और हिम्मत के साथ इन कोड्स को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इन कोड्स पे चर्चा करना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप जिस दिन चर्चा करना शुरू कर दोगे ना, एक आंदोलन बनेगा, और जिस दिन आंदोलन बनना शुरू हो जाएगा ना, सरकार तक आवाज जाएगी, और जिस दिन सरकार के पास आवाज जाएगी ना, उस दिन ये चीजें इंप्लीमेंट होगी। भाई साहब 2 मिनट और ले लूं? क्वेश्चन आंसर कर, आप वाइंड अप कर लो। चलो, मैं क्वेश्चन आंसर में कवर कर लूंगा। एक एंशिएंट स्क्रिप्चर्स का इश्यू आया था, 2 मिनट कवर कर लेता हूं भाई साहब, रिलेटेड ये से, वो हमारे आशीष जी का फेवरेट टॉपिक है। एक कोड पे हम लोगों ने चर्चा करी थी, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, जो अभी चूंकि सबने उस विषय के ऊपर चर्चा करी, मैं फिर कह रहा हूं, आप पढ़िए रामायण, महाभारत, वेदा, और दुनिया को कुछ नया देते हैं। हमने सेक्रेटरी स्टैंडर्ड दिया,
2017 में मलेशिया ने उसको अडॉप्ट किया, फर्स्ट टाइम किसी देश के स्टैंडर्ड्स को किसी दूसरी कंट्री ने अडॉप्ट किया था, वो हमारे स्टैंडर्ड्स थे। कब तक ओईसीडी के प्रिंसिपल्स को रेफर करते रहेंगे? कब तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस में किंग्स रिपोर्ट की बात करते रहेंगे? भाई, क्या हम हमारा कोई कोड दुनिया को नहीं दे सकते? हमारी सोच नहीं है, हमारी वैल्यूज नहीं है? क्या हमारे पास 5 दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हम, यदि हम इजिप्ट और उसको बात करें तो क्या हमारे पास क्या कोई कोड नहीं है? हमारे पास कोई एक्यूमेंट नहीं है? हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल बना करके दुनिया को दे सकते हैं, और हमारा स्क्रिप्चर इज द बेस्ट सोर्स। और अंत में चाहे पंचायत हो, चाहे कॉर्पोरेट हो या कुछ भी हो, सचिव था, सचिव है और सचिव रहेगा। यहां तक कि भगवान रामचंद्र जी का भी जब राज तिलक हुआ ना, तो सचिव से पूछ के ही भगवान राम का राज तिलक हुआ। राजा दशरथ ने बिना सचिव की परमिशन के राज तिलक नहीं किया। तुलसीदास जी लिखते हैं, मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए, जो 5 ही मत लागे नीका, करो हर्षि ये राम ही टीका। यदि तुम 5 लोग जिसमें सचिव शामिल है, आप लोगों को सही लगता है कि राम डिजर्व करता है युवराज बनने के लिए, तो राम को युवराज बनाओ, नहीं तो राम को युवराज मत बनाओ। ये सचिव है। थैंक यू। धन्यवाद श्याम जी। अमिताभ जी ने कहा था कि मिशन जरूरी है किसी भी काम को सक्सेसफुल करने के लिए, और एक और वर्ड है पैशन। मिशन और पैशन, ये दोनों के बगैर कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आज हमने देखा श्याम जी ने कितने पैशन से इस बात को रखा। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का कितना बड़ा नेशन बिल्डिंग में रोल है, कितने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सिटीजन बनाना, पंचायत को एम्पावर करना, ई गवर्नेंस को एम्पावर करना, ब्राइबरी को कॉर्पोरेट सेक्टर से खत्म करना, वैदिक कल्चर को, हमारे देश की संस्कृति और आध्यात्म को हमारे जीवन में आत्मसात करना, यह पैशन के बगैर नहीं हो सकता। और इनकी टीम में रंजीत जी और अपने आशीष जी और आने वाले अपने राव साहब और कई लोग जो साथ में पास्ट प्रेसिडेंट हैं, वह सब लोग, आप लोगों के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं चाहूंगा श्याम जी का एक बार तालियों से स्वागत कर दें। धन्यवाद। मेरे को पहले कहा गया था कि 4:30 तक है, 4 बजे के बजाय 4:30 का टाइम था। फिर तो मैं, क्वेश्चन आंसर भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं चाहूंगा 10-15 मिनट के पब्लिक क्वेश्चंस बहुत जरूरी होते हैं किसी भी चर्चा में। जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होता लोगों का, तो उतना आनंद नहीं आता। एक क्वेश्चन करके मैं भक्ति जी से ये पूछना चाहूंगा कि उसके बाद ओपन टू द पब्लिक। मेहता जी आगे इस क्वेश्चन आंसर सेशन को ले जाएंगे। भक्ति जी, अगर पंचायती राज जैसे सारी बातें हुई, एक चीज, क्या पंचायती राज इफेक्टिव हुआ एम्पावरमेंट में? ये सारी बातें तो कई तरीके से आ गई। एक बदलाव अगर कोई आपसे पूछा जाए, क्या चेंज और आना चाहिए पंचायती राज में, तो उस पे आप अपने विचार रख के देन यहीं से लग सकते हैं, फिर यहीं से आगे हम बढ़ेंगे। सर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा सर ने कि कोई एक बहुत बड़ा चेंज अगर हमसे पूछा जाए कि क्या आप समझते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम में एक महत्वपूर्ण चेंज आना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक हम देखते हैं कि इतने सारे इंस्टीट्यूट, भोपाल में ही, अगर मैं भोपाल की बात करूं, मैं थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंजीनियरिंग की बात करें, मेडिकल की बात करें या बिजनेस की बात करें, सो वी हैव एन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स। बट व्हेन इट कम्स टू द एग्रीकल्चर, व्हेन इट कम्स टू स्किल डेवलपमेंट, जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो हम लोग अपनी फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। और गांव का जो बच्चा है उसको सर पढ़ाई भी करनी है, उसके बाद उसको अपने पिताजी के साथ अपने खेत पे भी जाना है, उसको देखना है कि अनाज उग रहा है नहीं उग रहा, हार्वेस्टिंग होनी, रोइंग होनी, क्या है, रोटर बीटर चलना है नहीं चलना। सर, इसके बारे में टेक्निकल एजुकेशन अगर हम इनको इनके स्कूल्स में ही देना शुरू कर दें वॉलंटरी तरीके से, तो वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चेंज लेकर आएगा। सो दिस इज वन थिंग जो मुझे लगता है कि पूरे पंचायती सिस्टम को चेंज कर पाएगा। बिकॉज जब अभी डॉक्टर श्याम सर अभी बता रहे थे कि केरला में एग्जाम्पलरी काम हुआ है, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस कि वहाँ केरला में इसलिए इतना अच्छा काम हो पाया बिकॉज द एजुकेशन लेवल इज ग्रेट ओवर देयर, और वहाँ के लोग इनोवेशन से नहीं डरते। NIRD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद में है, और ज्यादातर MNCs हम देखते हैं साउथ में हैं, और वो लोग दिल खोल के एक्सपेरिमेंट्स और इनोवेशंस
मतलब तगड़े तरीके से कहते हैं, तगड़े तरीके से कर रहे हैं। आप सीरियसली कभी साउथ में जाके देखें सब, तो ये इसलिए पॉसिबल हो पाए क्योंकि एजुकेशन का रोल है। सो दिस इज वन थिंग दैट आई रियली विश, यू नो, इन द एजुकेशन सिस्टम फॉर द यूथ, दिस हैज टू कम अप। या, थैंक यू। Thank you so much. I think we must compliment the session chair, Shri Gopal Krishnan Agarwal ji, for so wonderfully comparing this entire session, chairing this entire session. And there have been so many takeaways. I'll be, when I conclude with vote of thanks, then I'll be explaining in 1 or 2 minutes time. Before that, I would like to invite our president, Ashish Garg ji, to release a publication on guidance note on auditing standards, which has been prepared and finalized by the auditing standard boards of our institute, chaired by our council colleague CS Vineet Chaudhary ji, who is not able to join because of he is not keeping well. But this guidance note has been approved by the council very recently, and today we are taking this opportunity to release through the hands of the president and our session chairman, Shri Gopal Agarwal ji. Sir, we also have a software release today. Realizing the technological needs of our members, the Institute of Company Secretaries of India will be entering into an MOU with Webtel to provide e-solutions and software for practicing company secretaries at discounted prices. We are, for the benefit of our members, there are 3 softwares: Webtel Web XBRL software, which is India's widely used XBRL conversion tool; Virtual Office to manage compliances of Companies Act, SEBI, RBI, FEMA, and taxation; and WebEdge, a comprehensive office management tool for job allocation, tracking, and attendance. We'll virtually release the web software. Great, thank you so much, sir. Just a little announcement. ICSI has translated the Panchayat Governance Code in 12 languages, which would be released tomorrow in the august presence of Shri Om Birla, Honorable Speaker Lok Sabha, and Shri Anurag Thakur, Honorable MOS for Finance and Corporate Affairs. Over to you, sir. I think I've got already message that next session's time is starting. Just to quickly sum up, I think Gopal Krishnan Agarwal ji, our session chair, he started with the session with the basic ingredients of governance, starting from Swadeshi Ki Kalpana, Vocal for Local, Atmanirbhar Bharat, decentralization of powers, public participation, and women empowerment, to name a few amongst all of things which he mentioned. And that was very ably supported and complemented by all panelists. I must say that today's panelists, Madam Bhakti Sharma, Amitabh Soni, Shyam Agarwal ji, Ishu Tayal, they are all India's youth icons. I mean, they are young, dynamic people with passion, vision, and they are actually working and implementing things. We can see. वो कहते हैं, सभी ने बोला कि एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, कुछ ऐसा करूं रोज कि हर शाम मुझे कुछ सुकून होना चाहिए। ये सभी उसी चीज को सार्थक करते हैं। और ये पैशन जो है ना, इंस्टीट्यूट की वर्किंग में भी, श्याम जी हम आपको दिखाएंगे, जो गवर्नेंस को लेके आपका पैशन है, ये इंस्टीट्यूशनलाइज करने का हमारा अपना जज्बा है इन चीज़ों को। चाहे आप पंचायत गवर्नेंस की बात करें, चाहे आप चैरिटी गवर्नेंस की बात करें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो हमारा डोमेन है ही, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाना ये हमारा सपना है। हम कोशिश करेंगे कि इसको भी एक हकीकत का जामा पहना पाएँ, और डेफिनेटली करना चाहेंगे। एंड ऑफ द डे, आई थिंक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो कहा था कि जब मैं छोटा था तो पूरे वर्ल्ड को चेंज करने की सोचता था, फिर मैं जैसे थोड़ा बड़ा हुआ मुझे लगा कि ये पॉसिबल नहीं है, फिर मैंने सोचा देश को ही चेंज करने की सोचता हूँ।
फिर जैसे थोड़ा और बड़ा हुआ, मुझे लगा ये भी थोड़ा बड़ा है मेरे मेरे सोच के हिसाब से विजन। फिर मैंने सोचा कि अपने शहर को ही चेंज करने की सोचता हूँ। फिर मुझे लगा कि ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। फिर मैंने सोचा कि अपने समाज को चेंज करता हूँ। फिर कुछ समय बाद मुझे फिर पता चला कि ये भी थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, तो मुझे अपने परिवार को चेंज करने की सोचा। तब तक मेरी एज इतनी हो गई कि मेरे फैमिली मेम्बर भी मेरी नहीं सुनते थे। फिर एकदम मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैंने खुद को चेंज किया होता, उस चेंज से मेरे परिवार को मैं अपने कन्विंस कर पाया होता, और मेरे परिवार से समाज उससे एग्जाम्पल लेता, और उस समाज के एग्जाम्पल से मैं देश को एक अच्छा एग्जाम्पल प्रेजेंट करता, और उससे क्या पता कि एक विश्व में एक प्रभाव डाल पाता। आई थिंक इन सभी शब्दों के साथ सभी वक्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। इंस्टीट्यूट की तरफ से, हमारी काउंसिल की तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी, श्याम अग्रवाल जी, भक्ति शर्मा जी, Amitabh Soni ji and Ishu Tail. Thank you so very much, and thank you all the participants who have been very patiently, very attentively listening to this entire session. Thank you so very much.